अमृत वेला। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। Happy Amrit Vela. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all for joining in. A very happy Amrit Vela to all of you. Thank you. Wow. What a beautiful morning. And let's start this beautiful morning with a very lovely gratitude to ourselves. I will be giving gratitude to myself and taking my name. आपने अपना नाम लेना है and be grateful कि आज today is a new day and आज के दिन आप फिर अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढने के लिए, एक पर्पस को अचीव करने के लिए इस सेशन में आए हैं। यू वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ एंड दैट नीड्स गुड ग्रैटिट्यूड, है ना। खुद को भी प्यार से एक बार ग्रैटिट्यूड दे देते हैं आज। तो एवरीबॉडी यू कैन जॉइन योर हैंड्स और कीप योर हैंड्स ऑन ओवर योर हार्ट एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ईश for getting up this early, for fatafat taking a shower, getting up with a smile, counting your blessings, and having a beautiful start to the morning. Thank you, Ish, for making your life magical. Thank you, Ish, for having a beautiful relationship with your family, with your friend, with your colleague, and loving each day of your life. Thank you, Ish, for living the best day of your life. Thank you, thank you, thank you. बहुत ही बढ़िया। So thank you everybody. Thank you for joining in and welcome. Welcome to the Millionaire Club. आज Millionaire Club से related we have finally reached to chapter number 5 that is called, बताओ कौन सा chapter है आज? Do you know which chapter we are going to cover today? Yes, magic money. Magic money is one of the most beautiful chapters and most magical chapters. इसके बहुत there are multiple reasons because of that. Because why is it called a very magical chapter? Because number one, you can quantify money. आप पैसे को गिन सकते हो। आपकी लाइफ में जितने भी एरियाज हैं, करियर है, रिलेशनशिप्स है, हेल्थ है, इट इज द चैप्टर यहाँ पे इजीली आपको एक क्वांटिटी में लिखा होगा कि हाँ यार इतने पैसे हैं या इतने पैसे हैं। या अब मेरे पास आज के डेट पे लेट्स से 1 लाख रुपीज मेरे पास अगर अकाउंट में है, तो 1 लाख रुपीज जब वो 80,000 होंगे तब भी मुझे पता चलेगा। एंड अगर वो 1 लाख रुपीज बढ़ के यू नो 150, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ जो भी बढ़ेगा, यू कैन क्वान्टिफाई कि इस महीने में जनवरी 2025 में राइट नाउ आई हैव दिस मच मनी इन माय वॉलेट, इन माय अकाउंट, इन माय लॉकर्स, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड फरवरी, मार्च, अप्रैल, इफ आई आस्क यू कि जुलाई में कितने हैं, तो देन यू विल बी एबल टू क्वांटिफाई। बस गिनना ही तो पड़ेगा। अगर एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ऑलरेडी डेली लाइक मंथली बेसिस पे दे कैलकुलेट कि बजट्स बनाते हैं डेली हर मंथ के कि ये बजट है इस महीने का, इतना हमने प्रॉफिट कमाया, इतना सेल्स किया, इतना परचेज किया। तो इट इज वेरी इजी एंड वेरी मच, आई वुड से इजी ओनली टू क्वांटिफाई द मनी, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द चैप्टर्स जहाँ पे आपको मैजिक्स होते हुए सबसे जल्दी पता चलेगा। एंड व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कि आप इस चैप्टर से इंस्पिरेशन लेके अपने बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में भी अवेयर कैसे हो सकते हैं, कि वो क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं। कि आज आपका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ अगर एक लेवल पे है, what we learn from the money chapter is if even if our relationship has one level and when it goes to another level, we can somehow feel or quantify it. वो कैसे होगा? That is the main journey of getting aware on how you can get to know that आप इस लेवल से ऊपर आए हो कि नीचे आए हो। So it is a beautiful chapter. And कल की, before we go forward, let's go to yesterday and do the magical health. So I want to know कि आपने magical health में chapter में did you do the assignments? How did you do the assignments? आपको क्या समझ आया? What all new things that you learned? And who all participated in the MMM yesterday?
Because of Ashmin ma'am, we got one more extra day as a free session. We got one more day जहाँ पे everyone, I was attending the yesterday's session and there were like 500 plus people together writing when Annie was leading it, and उसमें there was a beautiful chart, and what I could figure कि वो एक सिर्फ आउटर, अभी हम अपने आउटर बॉडी पार्ट्स के ऊपर ग्रेटिट्यूड कर रहे थे, एंड इवन दो आउटर बॉडी पार्ट्स took so much time, and still we were I was like कि अभी भी यार, अभी तो मैंने हैंड्स के सिर्फ 10-15 ग्रेटिट्यूड लिखे सिर्फ फिंगर्स के, and I have so many more things to write about, because when you're in the zone and you're thinking again and again and again, आपकी लाइफ में इतना कुछ खुलता है. And when I did it yesterday, तब से लेके अब तक constantly in my mind throughout the day, किसी ना किसी चीज में हेल्थ का ग्रेटिट्यूड चलते जा रहा है. जैसे वो सेशन खत्म हुआ, देन आई गॉट अप एंड आई स्टार्टेड हैविंग माय लंच. तो लंच खाते वक्त भी ऑटोमेटिकली, मतलब इट वाज ऑटोमेटिक, इट बिकेम ऑटोमेटिक कि मैं फिंगर्स के स्पून उठाते फिंगर्स का ग्रेटिट्यूड करने लग गया, अपने टीथ का ग्रेटिट्यूड करने लग गया इन दैट प्रेजेंट मोमेंट. तो क्या आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ आफ्टर डूइंग द एमएमएम? एंड इफ देयर आर न्यू पार्टिसिपेंट्स हु वुड लाइक टू शेयर कि एमएमएम प्रैक्टिस करके उनको कैसा लगा, प्लीज रेज योर हैंड्स ऑन द स्क्रीन सो दैट आई कैन अनम्यूट यू. एंड आप बहुत नॉर्मली शेयर कर सकते हो कि हाँ, आई डिड इट फॉर 1 hour 2 hour yesterday, एंड नॉर्मली आई राइट, ये मुझे समझ आया. अब जैसे yesterday even my staff was there and doing it with me. तो he shared कि no, no, he writes 15 20 25 gratitude daily, एंड कहता पहली बार मैंने 6-7 पेज 5-6 पेजेस ग्रेटिट्यूड एक साथ लिखा, एंड हिज द हिज ऑरा एंड हिज एनर्जी वाज ऑन. कहते बहुत खुश हो गए, लाइक सिंस दैट टाइम टिल द रेस्ट ऑफ द डे ही वाज स्माइलिंग. उसके मुंह पे बस ऐसे स्माइल करते, जो भी काम कर रहा है लैपटॉप पे फोन कॉल पे, इट इज स्माइलिंग एंड इज डूइंग दैट. तो इवन सम concentrated practice can change your life so much. Yes, Shashi ji, you can unmute yourself. Yeah, आपने कल क्या प्रैक्टिस की, आप हाँ बता जी। सकते. जी जी, मैं पार्क में घूम रही थी, उसके बाद अपने ग्रेटिट्यूड ही कर रही थी बॉडी पार्ट्स के लिए। इंस्ट्रक्शन मिले थे। तो जब मैं एड़ी पे पहुंची, सिर से कर रही थी, बालों में, रोमकूपों में, और बाल, मुंह के बालों का, आई लैश का, उसके अंदर के पनीलेपन का, आईज के, नोज के बालों का। तो ये मैं एनी के साथ कर रही थी कि मुझे लगा कि नोज के जो बाल है वो भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जब वायरस आता है तो उसमें नोज के बाल अंदर नहीं जाने देते। तो ये करते करते जब मैं एड़ी पे पहुंची, ओ माय गॉड, एड़ी पे पहुंची तो मैंने कहा, एड़ी हमारी पूरी शरीर का, हम 100 किलो के हैं, चाहे 60 के, चाहे 70 के, चाहे 80 के, एड़ी उसको मतलब बिल्कुल बैलेंस में रखती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एक एड़ी पे एक पैर उठाते हैं तो एक एड़ी पूरा वजन ले लेती है। और हमारा दिमाग के भी ग्रेटिट्यूड निकल गए उसी समय, कि वहां से हजारों ब्रिज बन जाते हैं जब वो एड़ी पर हमारा शरीर खड़ा होता है। ये विदाउट 1 सेकेंड के हिस्से में हमारे माइंड से इंस्ट्रक्शन आते हैं ब्रिज बनने के लिए। और वो ब्रिज एक नहीं होता, कम से कम लाखों ब्रिज होते हैं, तब हम एक एड़ी पे खड़े हो पाते हैं पूरे शरीर को लेके। तो ब्रिज बन जाता, उसी समय इंस्ट्रक्शन आता है कि सारे ब्रिज मतलब प्लेन हो जाते हैं। ऐसा होता है कि कहीं कि ब्रिज बना और वैनिश हो गया, मतलब हो गया फिर बन गया, एक ही सेकंड में दोनों काम हो रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे शरीर, मेरा जो मसल्स हैं वो एकदम प्लेन हो गई जब मैंने एक एड़ी रखी, कि ब्रिज बन गया, पूरे शरीर का भार उसमें आ गया। मैं थैंक यू भगवान जी की रचना, वाह कमाल का है। एक एड़ी पे पूरा शरीर। फिर मैंने दूसरी एड़ी करी तो वो ढीला हो गया, सारे जॉइंट्स मुड़ गए, घुटने, एंगल, दोनों 5 उंगलियां, तलवा, तो ये अपने फ्लेक्सिबल हो गए। फिर दूसरी एड़ी रखी। तो ये भगवान के चमत्कार पर माइंड के लिए, ये माइंड तो वास्तव में मतलब अनमैचेबल है, भगवान की शानदार कृति है कि वो, अच्छा इसके साथ साथ वो सोच भी रहा है,
बोल भी रहा है, और भी विचार भी आ रहे हैं, और हवा भी फील करवा रहा है, और वो मतलब गर्माहट भी, मतलब कोहरे को भी देख के खुश हो रहा है। तो माइंड के साथ साथ एक एक भगवान की रचना जो एड़ी पर पूरा शरीर टिका है, ये मेरे अंदर एकदम फीलिंग आई, और मैंने चमत्कार को नमस्कार किया, वेरी और गुड। मैं कहा थैंक यू को नमस्कार किया, थैंक यू। बस ये बहुत फीलिंग है बढ़िया। मेरी। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ डीप प्रैक्टिस। एंड सी, देख के कितना यू गेट टू नो कि आप एक एक बॉडी पार्ट हो। चाहे जैसे मैंने बोला कि आपके एडी होगी, इवन दैट सिंगल बॉडी पार्ट इज सो डूइंग सो मच। एंड ये नहीं अभी से, बचपन से, सिंस द डे यू वर born, if you start writing your gratitude सिर्फ उस एक बॉडी पार्ट का, आई एम श्योर देयर आर थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ थिंग दैट यू कैन बी ग्रेटफुल। कि कहाँ कहाँ पे आपको जूते पहनने में हेल्प करता है, आपका बॉडी वेट संभालता है, आपको सॉक्स पहनने में हेल्प करता है, आप हील्स पहनते हो, फ्लैट्स पहनते हो, डांस करते हो, वॉक करते हो, जंप करते हो, गाड़ी चलाते हो, एवरीथिंग। एंड ईच ऑफ एवरी टाइम इट नीड्स कि आप एक बार तो ग्रेटिट्यूड, उसका ग्रेटिट्यूड करो एटलीस्ट, आई वुड से एवरी डे, बट स्टार्ट डूइंग ग्रेटिट्यूड फॉर इवन द स्मॉलेस्ट पार्ट। इफ यू वांट कि आप, मैरी बुक ने लिखा था, इफ यू वांट कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए कभी ड्यूरिंग द टाइम, इफ देयर आर डेज और टाइम टाइम व्हेन यू फील कि यू नीड मोर क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि मैं भी, मुझे क्लियर नहीं है कि मैं क्या करूं, चाहे वो बिजनेस डिसीजन हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैजिक बुक ने बोला कि आप अपनी बॉडी के ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो। उस पर लाइन लिखी हुई है, इफ यू नीड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, gratitude for health will take you there. You can start with this powerful practice. And today, before we begin the next assignment of magic money, I would like you to, कि आपने डे जीरो पे, लास्ट डे पे एक लिस्ट बनाई थी ऑफ योर ड्रीम्स, अपनी वो लिस्ट एक बार खोल सकते हैं। एंड उस ड्रीम लिस्ट में से वट एवर थिंग दैट रिक्वायर्ड मनी, जिसमें मनी इन्वॉल्व था, वो एक बार पढ़ लो। एंड देन टुडे हम मनी से रिलेटेड एक लिस्ट और बनाएंगे बिफोर दिस सेशन स्टार्ट, सो दैट यू नो कि ऑल दीज थिंग्स इन माई लाइफ रिक्वायर्स मनी, कि ये सारी चीजें आपको पैसा इसके लिए जरूरत है। एक बार अपनी लिस्ट पढ़ लो, एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग अ न्यू लिस्ट फॉर टुडेज चैप्टर, सो दैट यू नो, अगर आपने आज की चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आज की प्रैक्टिसेस कंप्लीट कर ली, लाइक द वे दे आर डिजाइंड, लाइक विद फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जितना उस फीलिंग को मेंटेन कर पाओगे एंड जितना इंडल्ज कर पाओगे उसके अंदर, दैट लिस्ट विल बी स्टार्ट, चेक ऑफ होने लग जाएगी बहुत जल्दी। तो एक बार पढ़ लो कि व्हाट ऑल वाज देयर, एंड देन वी विल मेक अ न्यू लिस्ट। So everybody please take out your copy pen and start writing. मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर फॉर, जिसपे आप पैसा यूज कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो पैसे को। तो आई विल शेयर दैट ऑल्सो, इन केस आपके लिस्ट में भी कुछ वैसा सिमिलर है, यू कैन स्टार्ट राइटिंग डाउन। आप लिस्ट बना सकते हो कि हाँ, इतना पैसा चाहिए इस आइटम के लिए। लेट्स से इफ आई वांट टू गो टू गोवा, एंड गोवा जाने के लिए आई नो कि इतने की फ्लाइट्स है, 15,000 रुपये की फ्लाइट्स हैं। अच्छा, मुझे 4 नाइट 5 डेज के लिए जाना है, पर नाइट होटल रूम इज 10,000, हो गया 40,000, 40 + 15, दैट इज 55। देन आई विल बी गोइंग फॉर डिनर, एंड उसके लिए 30,000 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, दैट इज 85, 85,000। ओके, प्लस मिसलेनियस एक्सपेंसेस और आने की भी टिकट होंगी तो 15,000 उसकी ऐड हुई, दैट कम्स टू अ टोटल ऑफ 1 लाख रुपीज। तो ओके, तो नाउ फॉर 4 नाइट 5 डे ट्रिप, अमाउंट दैट आई नीड इज 1 लाख। एंड इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा होटल जाना है। इफ दैट इज ऑन माई ड्रीम लिस्ट, अगर मुझे गोवा एक्चुअली जाना है, तो मुझे एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कि मैं कौन से होटल में रुकना चाहता हूँ, कौन सी फ्लाइट लेके जाना चाहता हूँ, डू यू वांट, कौन से वहाँ पे जाके रेंटल पे स्कूटी लेनी है कि गाड़ी लेनी है, वहाँ पे इस रेस्टोरेंट में खाना खाना है कि इस रेस्टोरेंट में खाना खाना है। So all these things
नीड टू बी क्लियर। इसका एग्जाम्पल भी ये है, बिकॉज मैजिक बुक कहती है फील एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। जो सीक्रेट मूवी में भी हमने देखा है, इट सेज इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट समथिंग यू हैव टू फील एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। तो इफ आई आस्क यू, अपनी पुरानी ट्रिप के बारे में बताओ कोई। टेल मी अबाउट सम, लाइक पुरानी कोई ट्रिप पे आप गए हो फैमिली के साथ, एंड उसमें अगर आपको मैं पूछूं कि आप कहाँ रहने गए थे, आप कैसे गए थे, कौन कौन लोग साथ थे, कितने बेडरूम्स थे आपके पास, खाना कहाँ कहाँ पे खाया, तो यू वुड नो ना कि मैं हम फर्स्ट डे गए थे तो हमने फर्स्ट डे ब्रेकफास्ट होटल के अंदर किया, देन लंच के लिए हम इस रेस्टोरेंट पे गए थे, एंड डिनर के लिए इस रेस्टोरेंट पे गए थे, एंड हमने ये चीज़ें ऑर्डर की थी। तो यही वाली क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको आगे के लिए चाहिए होगा फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप। Number one, for money, let's start with the list. You can write down any travel experiences जहाँ आपको लिस्ट में चाहिए हो, कहीं पे आपको ट्रैवल करना हो, वो आप आपको कोई, अगर आपको है कोई एक ड्रीम डेस्टिनेशन है कि मुझे यहाँ ट्रैवल करना है, एंड थिंक जो आपको पसंद आए। नॉट इफ माई माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू लंदन तो मुझे भी लंदन जाना है, मेरी फैमिली अभी बहुत ज़्यादा कनाडा घूम के गई तो मुझे भी कनाडा जाना है। नॉट लाइक दैट, जो आपको एक्चुअली पसंद हो। एंड इसको पता कैसे करेंगे कि आप अगर एक ट्रिप के लिए उसमें क्लैरिटी ढूंढने लग जाएंगे कि अगर मैं लंदन जाना चाहता हूँ तो कौन सा होटल है। अगर ये सब कुछ ढूंढने में भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग कि आप इसमें प्रोसीड कर सकते हो। ओके, तो ट्रैवल हो गया। एनी लग्जरी स्टेज दैट यू वांट, यू हैव सीन सम लग्जरी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मुझे इसमें रुकना है, आई वांट टू एक्चुअली स्टे देयर एंड यू स्टिक टू दैट, यू कैन राइट इट डाउन। एनी हॉबीज और इंटरेस्ट, आपको कुकिंग सीखनी है, उसकी दैट विल रिक्वायर मनी। आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने का मन है, दैट विल रिक्वायर मनी। आपको कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करने का मन है, आपको कोई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट पे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ जाने का मन है, यू नो दैट दिस होटल हैज अ वेरी गुड रेस्टोरेंट एरिया, एंड इसका एक डेजर्ट है जो आपको पता है बहुत फेमस है। जैसे some people, some there are some special things over there कि कहीं छोले, इवन स्मॉलेस्ट थिंग कि कोई छोले भटूरे वाला आपको पता है कि बहुत फेमस है आपके यहाँ पे दिल्ली में, देयर इज पहाड़गंज में छोले भटूरे वाला है, एंड इट इज बहुत वेरी फेमस, एंड आई वांट कि मैं और एनी जाके वहाँ पे खा के आए। तो वो भी लिखो, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग राइट इट डाउन। आपको कोई सेल्फ केयर करना है, कोई स्पा करवाने जाना है, कोई मसाजेस करवानी है, कोई आपको हेयर कट करवाना हो, इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स यू नीड टू राइट इट डाउन। फेशियल करवाना है, हेयर कट करवाना है, पेडिक्योर मैनिक्योर, एनीथिंग। आपको वार्डरोब में क्या चाहिए, कपड़ों में कैसे कपड़े पहनने हैं, एग्जैक्ट ब्रांड, एग्जैक्ट डिजाइन यू शुड नो। क्योंकि हम अगर फ्यूचर में आके बात करें, जब आपके पास वो चीज़ होगी ऑलरेडी, तो देन यू विल नो ना कि आप, इफ आई से ये वाला ब्रांड है, अभी ये मेरा जो मैंने आज कोट पहना हुआ है, in order to manifest this quote, I have to be in the feeling of as if I have already received it. तो आई वुड नो ना कि इसमें ग्रीन चेक वाला डिजाइन है, इसमें यहाँ ब्रोच लगा हुआ है, ये इस कंपनी का है, इसका कॉस्ट ये था, ये मटेरियल है। आई शुड नो, एंड इफ द प्राइस यू डोंट नो, यू कैन राइट डाउन एन अप्रोक्सीमेट प्राइस। एंड अगर इफ यू फील कि देयर इज अ वे कि अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो प्राइस निकल आएगा, तो ढूंढ लो। अगर मैं ढूंढना चाहूँ कि प्राइस, एग्जाम्पल, I want to go to London to a hotel of Hyatt, let's say example। तो हायत का होटल का मुझे प्राइस नहीं पता है यार, मैं लिखूं प्राइस या छोड़ूं। अरे जस्ट इफ यू नो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो होटल, एंड देयर इज अ वे टू गेट द प्राइस, एटलीस्ट गो गेट द प्राइस एंड देन राइट इट डाउन। इतनी मेहनत आपको करनी होगी। अगर आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं तो ब्रांड कौन सा होना चाहिए,
Which brand do you want to wear? Exactly, you should know. Keep writing it down. आपको कोई ड्रीम कार चाहिए, गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी कौन सी है, कौन से ब्रांड की है, कौन से सेगमेंट की है, कौन सी पेट्रोल है कि डीजल है, कौन सी कलर कौन सा है, एग्जैक्टली जितनी डिटेल में आप जाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन, मैं एक बार पढ़ के भी आपको उसमें कुछ अगर क्लैरिटी वाला होगा देन आई वुड से। अगर BMW ब्लैक ब्लैक कलर है तो BMW ब्लैक कलर, BMW का मॉडल कौन सा है? BMW में देयर आर 10 मॉडल्स। X1 है, X5 है, X7 है, 2 सीरीज है, 3 सीरीज है, 5 सीरीज है, 7 सीरीज है। 7 सीरीज में भी 2 मॉडल आते हैं, LI आता है, नॉर्मल आता है। अगर आपको इतनी डिटेल में नहीं पता तो वो आपका सपना अभी बना नहीं है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग एल्स। इफ यू हैव टू गो, टेक इंटरेस्ट एंड फाइंड आउट द एग्जैक्ट थिंग्स। अगर आपको अपना घर रेनोवेट करना है तो रेनोवेट में व्हाट इज देयर, what is the exact thing that you want to renovate, how you want to it to look like। आपकी रेनोवेशन हुई, अच्छा पेंट कौन से कलर का होगा, क्लैरिटी लाओ और। आप जिन्होंने गाड़ी लिखी है तो गाड़ी, अब उसका प्राइस आपको एग्जैक्ट पता ऑन रोड क्या है आफ्टर टैक्सेस एंड एवरीथिंग? इफ इट्स इन योर माइंड ऑलरेडी, ओनली देन यू विल बी एबल टू। ऐसे आना चाहिए आपको प्राइस उस टाइम पे क्लैरिटी से। कहाँ पे डीलरशिप कहाँ है ऐसे पता होना चाहिए, किस बंदे से लेना था ऐसे पता होना चाहिए, कौन से बैंक से फाइनेंस करवाना है या नहीं करवाना ऐसे पता होना चाहिए। यू नीड टू हैव वेरी सिंपल। गाड़ी खड़ी कहाँ करोगे? अब आप बोलो कि मुझे गाड़ी चाहिए, लिमोजिन, और घर पे सिर्फ स्कूटर खड़े करने की पार्किंग है आपके पास, तो फिर पता तो होगा कि लिमोजिन आ तो जाएगी, बट यूनिवर्स बोलेगी खड़ी कहाँ करोगे इसको, उसकी पार्किंग कहाँ होगी, उसे चलाएगा कौन, उसके इंश्योरेंस कैसे करोगे, उसे ड्राइवर कैसा रखोगे, ड्राइवर यूनिफॉर्म पहनेगा कि नहीं पहनेगा, ड्राइवर का नाम क्या होगा। You need to have very specific clarity. Then there can be any tech tech gadget that you want to have in life. It could be any new phone, any new laptop, AirPods, uh, any other thing which you can think of। किसी को नया आईफोन चाहिए, किसी को नया सैमसंग का फोन चाहिए, किसी को फोल्ड वाला फोन चाहिए, तो यू कैन राइट इट डाउन। थिंक कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए लाइफ में, जो वांट एक्चुअली वांट में आएगा। ये नहीं कि हाँ फोन अभी ये हो गया, 1 साल हो गया इसको, चलो नया फोन ले लेते हैं। वेयर इज द मनी, व्हाट डू आई वांट टू डू विद द मनी दैट आई विल डू, आई विल मैनिफेस्ट। एनी memberships you want to join, any gym memberships you want, any organization memberships, any hotel memberships, कोई आसपास आपके कोई स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पे मेंबर बनना है आपने, तो उसके लिए देयर इज मेंबरशिप फी, कि हाँ इसकी 15,000 रुपये महीने साल की है, इसकी 1 लाख रुपए साल की फीस है। व्हाट व्हाट डू यू वांट? मेंबरशिप फीस के बाद देन वी हैव सेलिब्रेशंस। मनी से सेलिब्रेट करना है, आपका बर्थडे आ रहा है, आपकी एनिवर्सरी आ रही है, एंड देयर इज अ वे यू वांट टू सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेशन कैसे होगी एग्जैक्टली वो भी लिखना है, एंड उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी आपको पता होना चाहिए। तो यूनिवर्स बोलती है, फर्स्ट स्टेप इज टू हैव क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट, ओनली देन इट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। तो थिंक, हाउ डू यू वांट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। अगर बर्थडे घर पे पार्टी करके आपको अच्छा लगता है, किसी को क्लब्स में 12 बजे केक काट के क्लब में अच्छा लगता है, सम पीपल वांट्स कि मैं मंदिर जाके करूँ, कोई अपने सबको वृंदावन ले जाएगा अपने फैमिली को, सम पीपल वांट्स कि
बस घर पे बैठूं अपने पार्टनर के साथ केक काटूं ना, आई एम हैप्पी। तो यू शुड नो व्हाट यू वांट, जिसमें आपको अच्छा लगता हो। एनी एडवेंचर्स यू वांट टू डू, कि बचपन से मन है कि एक बार स्काई डाइविंग करूं, स्कूबा डाइविंग करूं। अब जैसे व्हेन आई सॉ द मूवी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो मेरे को बहुत, आई यूज्ड टू रिपीटेडली सी दैट अगेन एंड अगेन, एंड आई यूज्ड टू इमेजिन कि मैं भी ऐसे बस स्काई डाइविंग कर रहा हूँ, मैं भी स्कूबा डाइविंग कर रहा हूँ। एंड सो, एंड जो लास्ट में बुल बुल के आगे भागते हैं वो भी, तो आई हैव डन ऑल ऑफ देम। आई हैव डन द स्कूबा डाइविंग, आई हैव डन द स्काई डाइविंग, आई हैव रन इन फ्रंट ऑफ अ बुल। बट बुल वाला थोड़ा अनइंटेंशनल था, वो एक्चुअली कोई एक बुल पीछे पड़ गई थी, बट आई हैव डन ऑल ऑफ देम। So this is how universe works. So think education, you want to attend any workshop, you want to attend any education, आपको रिट्रीट्स पे जाने का मन है कहीं पे, आपको कोई स्पिरिचुअल वर्कशॉप करने का मन है, उसकी कॉस्टिंग क्या है, उसको कितना पैसा लगता है। some spiritual workshop cost 3,000 5,000, some cost 1 lakh 10 lakhs। आपको अगर बड़े स्केल पे टोनी रॉबिन्स की वर्कशॉप अटेंड करने का मन है, वो इतने की होती है, उसके लिए कितना पैसा लगता है, कहाँ जाते हो, सब कुछ। Any personal development you want to hire a coach, you want to hire a लाइफ कोच हो गया, मेंटर हो गया, कोई थेरेपिस्ट हो गया, टू रीच सम पर्सनल गोल, राइट इट डाउन। कितने पैसे लगते हैं, किसको हायर करना है, इन डिटेल। एनी बुक्स यू वांट टू बाय, कि मुझे ये बुक्स चाहिए, ये नॉलेज चाहिए, ये कोर्स करना है, तो ये कोर्स के इतने पैसे लगते हैं। आई वांट टू डू दिस एजुकेशन, आई वांट टू गो स्टडी अब्रॉड, अब्रॉड के इतने खर्चे एग्जैक्टली यू शुड नो। देन कम डोनेशंस, चैरिटीज की डोनेट करना है, बट डोनेशन आई वुड से थोड़ा लेट लेके आना, एंड ऑफ द टाइम। स्टार्टिंग में इन चीज़ों पे फोकस कर लो, दैट इज फर्स्ट गिविंग यू हैप्पीनेस। डोनेशन ये एक बार होने लग जाए आपका साथ, देन यू कैन कम इनटू डोनेशंस। बट इट इज टोटली, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज टोटली आपको जैसे अच्छा लगे यू कैन डू। इट इज नो राइट और रॉन्ग इन दिस। आपको जो अच्छा लगे आप पैसे कर सकते हो। अब आपने एमएमएम के पैसे देने हैं एंड यू वांट कि आई वांट पैसे तो पे, उसमें मनी इन्वॉल्व है, तो यू कैन पे दैट। आपको कोई पैशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इट इज समथिंग, आपको कोई, आपका नॉर्मल बिजनेस अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एंड नाउ यू वांट कि मैं पैशनेट, आई एम पैशनेट अबाउट बेकिंग, एंड आई वांट समथिंग, उस पे कुछ स्टार्ट करूं। राइट इट डाउन एवरीथिंग with clarity of how much money will it cost. If you want a any, आपका सैलरी इतनी हो जाए, कुछ काम आपके हेल्थ इंश्योरेंसेस, लाइफ इंश्योरेंसेस का ये पे करना है, तो राइट इट डाउन। 629। यस, एंड थैंक यू। दिस इज हाउ स्टेप बाय स्टेप यू विल स्टार्ट गेटिंग क्लैरिटी। अभी आपके आगे जाके वी विल वर्क मोर ऑन दिस, बट बिफोर वी complete this session, we have a few seconds, कॉपी पेन रख दो। लेट्स स्टार्ट विद वार्मिंग अप आवर बॉडी एंड गेटिंग इनटू पीस स्टेट। ओके, so first we will start rotating our hands in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, reverse 5, 6, 7, 8, 9, and then हम बोलेंगे ये, yes, yes, shoulders move करेंगे up and down and up and down and up and down and up and down and up and down, and ये faster, 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 punch, punch, higher punch, come on, yes, 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 yes. And thank you all for joining in, and let's welcome Ashwin ma'am. So good morning ma'am, thank you, thank you, thank you. Good morning, everyone. Good morning, Beta Ji. Good morning, everyone, to this beautiful new morning to begin with. Good morning, good afternoon, good evening, and happy Amrit Vela to all of us. Still going on with the Amrit Vela. Such a wonderful time for this session
वी आर इन दिस पर्टिकुलर टाइम जोन ऑफ द ईयर जहां पर अमृत वेला 7 बजे तक भी चल रहा है अभी. So thank you very much for being here and really manifesting your dreams in a very positive zone. अपने आप को उस सुखद अवस्था में रखना, पॉजिटिव जोन में रखना, अपनी उस विजुअलाइजेशन में ग्रैटिट्यूड के साथ बने रहना, and that's where you really put velocity and speed to your dreams. So thank you very much for being in this Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Lovely afternoon. Ma'am, happy Very morning, wonderful. magical morning, divine morning. Good Good morning. morning. Magic. We are Beautiful very happy morning. this morning. We Diwali morning. Very much happy birthday to people who are born on this beautiful day. Happy birthday to you and happy anniversary to lovely couples out there. आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हमेशा 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 के लिए, फ्रॉम बिगनिंग टू द मोमेंट यू आर देयर, नॉट ओनली देयर, मतलब ये नहीं कि इस जन्म में, अगले जन्म में, उससे भी अगले जन्म में. और जो चीज आप दिल से सीखते हो, देखिए दो तरह से सीखता है इंसान. एक होता है दिमाग से सीखता है. दिमाग से सीखता है तो वो जो इस जन्म में सीखा हो यहीं पे रह जाएगा, आगे नहीं जाएगा. पर जो चीज आप दिल से सीखते हो वो हमेशा आपके साथ साथ, बिकॉज वो सोल लर्निंग होती है, वो हमेशा आपके साथ साथ आगे बढ़ती चली जाती है. तभी जब कहा जाता है कि पैशंस को फॉलो करो, क्यों? क्योंकि पैशन में आपका दिल जुड़ा होता है. तो आपने पिछले कई जन्मों की भी उस पर मेहनत की होती है. जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी कभी आजकल तो टीवी पे पता चल जाता है ना, आजकल तो टीवी जिंदाबाद. तो कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, कभी आपने देखा है, नोट किया, 2-3 साल का, 4 साल का बच्चा होता है, स्टेज पे आता है, क्या क्या गजब का डांस करता है. मतलब जो बड़े बड़े डांसर्स ना कर पाए वो 3-4 साल का बच्चा कर रहा होता है स्टेज पे. हाउ मेनी ऑफ यू सी दैट? या कोई कभी कोई सिंगिंग करता है तो मतलब बड़े बड़े छोटे से बच्चे होते हैं 4-5 साल का, और वो ऐसी सिंगिंग करता है कि मतलब कि तुम सोचो इसको सुर कहाँ से समझ आए इतने. या कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं. मतलब आप कोई भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछो, वो सबका जवाब दे देते हैं आपको. तो और वो होते छोटे छोटे हैं, 3-4 साल के बच्चे होते हैं जो बोल सकते हैं खाली. तो आपको, आपने कभी सोचा ही कैसे कर पाते हैं ये? क्योंकि उनके पास वो जो लर्निंग है, जो उन्होंने डांस सीखा या उन्होंने कुकिंग सीखी या उन्होंने जो भी नॉलेज सीखी वगैरह वगैरह, जो भी टैलेंट या नॉलेज जो उनके पास है, वो उन्होंने दिमाग से नहीं सीखी थी. वो उन्होंने जब भी पिछले जन्मों में जब भी किया, जैसे कि मैंने अगर मेकअप सीखा, एक होता है सिर्फ दिमाग से सीखना क्योंकि मुझे पैसा कमाना है. एक होता है कि मैंने दिमाग से सीखा, पर जब मैं मेकअप कर रही हूँ मैं उसकी एक एक बारीकी को दिल से फील कर रही हूँ, उसको दिल से सीख रही हूँ, दिल से कर रही हूँ काम को. जो काम आप दिल से करते हो, ऑब्वियसली काम कोई भी करते हो तो पहले सीखना पड़ता है ना. चाहे साइकिल भी है, चलानी है तो सीखनी पड़ती है पहले. तो आपने सीखी, हाँ, उसको समझा, हाँ, आपने उसको लर्न किया, हाँ, और अब उस काम को करते हुए आप कोई मजबूरी में या जबरदस्ती में नहीं कर रहे हो, आप उसको दिल से कर रहे हो. वो चाहे डांस भी है, पर आप जब भी डांस करते हो आप दिल से करते हो. तो ये जो आप दिल से करते हो वो आपकी सोल, उसको क्या कहा जाता है, वो आपके ब्रह्म ज्ञान में एंटर, मतलब आपके सोल के अंदर एंटर कर जाता है वो. क्योंकि बार बार जो चीज आप सोचते हो, बोलते हो, वो आप फील करने लग जाते हो. तो कई लोग डांस करते हुए फीलिंग्स के साथ डांस करते हैं, मतलब दे फील द डांस, दे फील द म्यूजिक, दे फील द मेकअप, दे फील द कल्नरी, दे फील द नॉलेज. मतलब वो इवन किसी चीज की नॉलेज भी ले रहे हैं, साइंस भी सीख रहे हैं, या इवन कोई फॉर्मूला भी सीख रहे हैं. अगर मुझसे कोई पूछे H2SO4 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब मैं सीख रही हूँ क्योंकि मेरे को नंबर लाने हैं, क्योंकि मेरे को दिमाग से सीखना पड़ रहा है. पर कोई कोई ऐसे भी तो हो सकता है ना जो वो वही फॉर्मूला केमिस्ट्री का सीख रहा है और बड़े दिल से सीख रहा है, उसको बड़ा मजा आ रहा है, उसको करने में उसको खूब आनंद आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, और बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ वो कर रहा है वो काम को. तो जिन कामों में आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, धीरे 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 वो आपके अंदर रिसना शुरू कर देता है. तभी तो कहा जाता है कि अभी आगे चैप्टर आने वाला है कि किसी भी जब आप काम को करते हो तो उसको उस मुहाने तक धकाओ. मुहाने तक धकाना आने वाला है चैप्टर, वो आगे अभी 1-2 दिन में आएगा. तो मतलब कि आप जिसमें आपको मजा आ रहा है जिस काम के अंदर, उसी के अंदर इंस्टिल हो जाओ, आप इंस्टिल हो जाओ. परंतु इंस्टिल होकर क्या मिलने वाला है? देखिए, हर काम के अंदर आपको, अगर आपने उस काम के अंदर ये जो रूल्स हम सीख रहे हैं वो रूल्स आपने फिट कर दिए, वो काम कोई भी हो सकता है. आप एक फ्रूट सेलर भी हो सकते हो, आप एक मोची भी हो सकते हो, आप एक रेडी वाले भी हो सकते हो, आप एक जूस वाले भी हो सकते हो, आप एक टिक्की वाले भी हो सकते हो, आप कोई भी काम करो दुनिया का. पर वो काम, वो जो आप दिमाग से सीखे, दिमाग से कर रहे हो, परंतु उसको करने में आपकी फीलिंग्स बड़ी गुड है. आप हमेशा हर समय उठते हो कहते हो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि आपने दोनों चीजों को इनकॉर्पोरेट कर दिया. अब एक्शन में बने रहो, काम करो 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 करो, और इतनी शिद्दत से करो, इतनी कमिटमेंट के साथ करो कि मतलब ग्रेटफुल विजुअलाइजेशन, आपके एक्शन, सब कुछ उसमें जुड़ गया है. इतनी खुशी खुशी आप कर रहे हो, तो क्या हर काम आपको तरक्की दे सकता है, हर काम आपको. और जब आपने ये फॉर्मूले सही सेट कर दिए हैं तो अब पता है किसे चलेगा कि फॉर्मूले सही सेट हो गया. और जो आप कम काम कर रहे हो, मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में सही फॉर्मूले के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड्स देना शुरू करेगी अब.
जैसे एक स्कूल में नहीं होता, एक बच्चा अच्छे पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर लाता है, तो क्या करते हैं स्कूल वाले, आपको कोई रैंकिंग देते हैं, कोई अवार्ड देते हैं, है ना, कोई आपको पोस्ट देते हैं या कोई भी प्राइज देते हैं, जो भी स्कूल वाले करते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा बहुत अच्छा है, सारी बात मानता है पापा की मम्मा की, और बहुत सारे अपने सारे कामों को रिस्पॉन्सिबिली पूरा करते हैं, माँ बाप भी आइसक्रीम देते हैं, टॉफी देते हैं, कोई शाबाशी देते हैं, कुछ तो करते हैं, यस नो में भी दे रिवॉर्ड ना इन सर्टेन वेज। जैसे कि अगर कोई गलत कर रहे हो काम तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, कॉमन है, स्कूल में पनिशमेंट मिलती है, घर में पनिशमेंट मिलती है, सड़क पर पनिशमेंट मिलती है। अगर आप कोई काम अच्छा कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट थोड़ा ना मिलेगा, वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप इस समय कर्जों में हो तो ये क्या है, आपकी पनिशमेंट। जो चीज आपको दुख दे, पेन दे, वो आपकी पनिशमेंट है, ठीक है। तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, और इसलिए आपको आज की डेट में ये दर्द या दुख या सजा मिल रही है। अगर आपने काम अच्छे किए तो अब क्या करेगी, अब यूनिवर्स कैसे आपको रिवॉर्ड करेगी, वो देखिए कि आपको चाहिए क्या। पेरेंट्स नहीं होते, फोन चाहिए कि गाड़ी चाहिए कि बाइक चाहिए, क्या चाहिए तेरे को, तो पेरेंट्स रिवॉर्ड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कूल रिवॉर्ड करता है। उसी तरह से यूनिवर्स पूछती है, अच्छा क्या चाहिए, तो मतलब किसी ना किसी में पूछती है वो आपसे। तो अगर आपको सपोजिंगली नेम चाहिए, फेम चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए आपको, या आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, या आपको बहुत सारी इज्जत चाहिए, या आपको बहुत सारी जो भी चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी चाहिए होती है ना, वांट आपकी अपनी है। तो पैसा, शोहरत, नाम, इज्जत, ये सब कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। आप इसे कमा रहे होते हो, इसको कहा जाता है सुच्ची कमाई। मतलब अब अपने ये वाली सुच्ची नहीं है, सुच्ची कोई और होती है, परंतु ये भी कमाई होती है। आपने नाम कमाया, आपने इज्जत कमाई, आपने पैसा कमाया, ओके। तो जो आप कमा रहे हो तो कमाते कैसे हो, आपने कोई ना कोई फॉर्मूला सही सेटिंग किया है उस पर्टिकुलर फील्ड में। और वो फील्ड कोई भी हो सकता है। आई अगेंस्ट से कई लोगों को लगता है कि ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। आप कोई भी काम कर लो, मतलब आई हैव फ्रॉम माई ओन आईज, मैंने अपने खुद की आंखों से, भगवान ने इतनी कृपा की है ना लाइव एग्जांपल्स में मेरी लाइफ के अंदर। मैंने एक रेडी, मैंने खुद के सामने उस रेडी को लगते हुए देखा है। आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, आई स्टिल रिमेम्बर, 7th या 8th में होंगी, और हमारे स्कूल में होम साइंस होती थी। और होम साइंस में हम लोग एम्ब्रॉयडरी सीखते थे, भरवा एम्ब्रॉयडरी, स्टिच एम्ब्रॉयडरी, चेन स्टिच, ये वो बहुत सारी चीजें एम्ब्रॉयडरी होती थी। तो एम्ब्रॉयडरी का सारा सामान, बिकॉज आई यूज टू स्टे इन पीतमपुरा, तो वहां पर रानी बाग में सेठी सेठी के नाम से दुकान थी, जहाँ पे सारा एम्ब्रॉयडरी का सामान मिलता था। एंड आई यूज टू गो देयर वेरी रेगुलरली, हर हफ्ते जाना ही पड़ता था सामान लेने के लिए। तो जो भी मिलता था वहाँ सामान, और वहीं पे साइड में भट्टी के, भट्टी मतलब वो जो भट्टी नहीं कहते, जो ये हाउस मटेरियल का सामान भेजते हैं, जैसे बदरपुर, रेता, बजरी वगैरह वगैरह, उसकी एक दुकान, उसका एक गोदाम, गोडाउन था। गोडाउन तो अंदर था, बाहर उसकी जगह थी जो कि काफी चौड़ी थी, जहां से सिर्फ ट्रक तभी बाहर आते जाते होंगे जब सामान ने आना जाना है। तो और मार्केट खुल जाए तो फिर ट्रक नहीं आ सकता ना। तो वो दिन भर में तो वो वहां से सप्लाई नहीं होती थी, सिर्फ सुबह अर्ली मॉर्निंग या रात में होती थी सप्लाई। तो दिन भर में उनकी एंट्री वेस्ट ही है, क्योंकि वहां पे कुछ ट्रक आ नहीं जा रही, ना रही है। तो उन्होंने वो जगह ना एक रेडी वाले को दे दी, मतलब कि रेडी वाले को दे दी कि भाई तू अपना यहाँ पे लगा ले रेडी। उससे पैसे लेते होंगे क्या पता, क्योंकि मैं जाती थी सेठी की दुकान पे, बहुत रश होता था, मैं कई बार बाहर खड़े होकर फिर उस रेडी वाले से कुछ खा लेती थी। तो वो सिर्फ एक चीज भेजता था, टिक्की। और जब मैंने उससे टिक्की खानी शुरू करी, मेरे को वो भी दिन याद है जब वहां रेडी नहीं होती थी, और वो भी दिन याद है जब वहां रेडी लगी। और मुझे वो भी दिन याद है जब रेडी का कोई नाम नहीं होता था, और फिर रेडी पे धीरे धीरे पोस्टर लगा नीचे, जैसे रेडी चल गई ना उसकी, तो उसने अपना नाम लिख लिया नीचे। तो उसका नाम था बिट्टू टिक्की वाला, रानी बाग। हाउ मेनी ऑफ यू नो बिट्टू टिक्की वाला, BTW। और वो रेडी, मतलब मैंने उसकी टिक्की को पहली बार खाया था, और मैंने कहा नाइस। मतलब ऐसी टिक्की मैंने पहले नहीं कभी खाई, जो उसमें उसने डाला ऊपर से, और जो भी उसका टेस्ट था। मतलब आई वॉज ए फ्रिक्वेंट ईटर, बट वो टिक्की उसने बड़े पैशन से बनाई थी। और कमाल की बात ये थी, 100 टिक्कियां अगर बना रहा है या 200 टिक्कियां बना रहा है, हर बंदे को चाहे डबल दे रहा है, सिंगल दे रहा है, हर टिक्की को सेम सजाता था। वही ऊपर अनार डालना, वही जो भी ऊपर पर डालता था सजा के, हर टिक्की के ऊपर सेम क्रंचीनेस, सेम सजावट, सेम सब कुछ, क्योंकि वो उसका पैशन था। उसको बड़ी खुशी खुशी कर रहा था, तो जो भी कर रहा था। और धीरे 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 हाउ मैनी वी सॉ कि वो BTW आज की डेट में एक ब्रांड बन गई है, और क्या पता कितने और कितने बड़ी केटरर कंपनी बन गई है। मतलब कैसे बढ़ गई वो इतना, क्योंकि वो उसको रिवॉर्ड मिला है अपने काम के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने रेगुलरिटी के लिए, अपनी बिल्कुल ठीक टाइम पर सुबह आता था, बिल्कुल वो जो भी उसका टाइम था, और जो भी उसने अपने क्वालिटी की कंसिस्टेंसी रखी है। अब आप सीखो कि आपने ये फॉर्मूला कैसे सेटिंग करना है, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा, 101% रिवॉर्ड करेगा। मतलब किसी और से क्या पूछना, मुझसे पूछ लो। मतलब जीरो, कुछ भी नहीं, और कुछ तो बना ही दिया था यूनिवर्स ने, कुछ तो दिया ही था। तो आज हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर अगर आपको रिवॉर्ड में पैसे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कितनों को रिवॉर्ड्स में पैसे चाहिए, कि हम ऐसा क्या करें कि हमें पैसों की दुनिया के अंदर कमाल के रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाए। पहले तो क्लियर होना चाहिए ना कि पैसे किस किस को चाहिए।
तो ये पैसों की दुनिया है। आज हम जिस जिस दुनिया में एंटर करेंगे, तो अगर आज की डेट में आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहे हैं या उतने नहीं मिल रहे हैं जितने कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, 101% आपने या तो इस जन्म में, मैं इस जन्म की बात क्या करूंगी, आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, आई डोंट नो व्हेन, या हो सकता है पिछले जन्मों से ही आप नाशुक्रे रहे हो सकता है। कई बार लोग जो गरीबी में पैदा होते हैं ना, कई बार आपने ऐसे लोग देखे हैं जो जिस घर में पैदा हुए शुरू से तंगहाली थी, शुरू से ही बहुत लिमिटेड पैसा था, तो ये लोग इस घर में पैदा क्यों हुए? ये लोग अंबानी के घर में भी तो पैदा हो सकते थे ना, तो इस घर में क्यों पैदा हुए? क्योंकि इस घर के पैसों की स्टेटस आपके भाग्य में लिखी गई है। और ये भाग्य कौन बना रहा है, तकदीर कौन बना रहा है? आप खुद खुद ही तो बना रहे हो अपने खुद के कर्मों से। अब नाउ अंडरस्टैंड। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जिस घर में पैदा होते हैं वहां पे शुरू से कर्जे होते हैं, मतलब वो घर या वो परिवार या माता पिता पहले से ही कर्जों में डूबे हुए हैं। ये नहीं कि इस बच्चे के आने की वजह से कर्जे चढ़े हैं, वो पहले से कर्जों में डूबे पड़े हैं। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो मतलब बिल्कुल ही अपनी नैया डुबा के आई है पीछे से, मतलब इन्होंने इतनी नेगेटिविटी करी है कि आज की डेट में इनके पास मतलब जब पैदा हुए तो इनके पास इनफ पैसे भी नहीं थे। अब वालों हैं, हाँ हाँ हाँ, हर चीज इस दुनिया में, नथिंग इज कोइंसिडेंटल, एवरीथिंग हैज अ प्रॉपर रीजन बिहाइंड इट। तो खैर, अभी हमारे को अगर रीजन ना भी पता हो कोई बात नहीं, अपनी अपनी करंट स्टेटस देख लो। अगर पैसों की दुनिया में आपको लगता है कि यू हैव अबंडेंस, अबंडेंस मतलब बथेरा है, बहुत है, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही है, तो ऑब्वियसली आप शायद कृतज्ञता को कहीं ना कहीं फॉलो करते हो। और अगर आपको लगता है कि पैसों की दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत कंप्लेनिंग है, बहुत ज्यादा मतलब उसमें ब्रेकडाउन्स हैं या कर्जे हैं या कम है, तो कहीं ना कहीं आपने शिकायत करी है, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एनर्जीज की दुनिया है, यहाँ पे सिंपल आंसर है। ठीक है, तो आज का 5वां दिन जादुई धन मतलब मैजिक मनी। अगर आपने अपनी जिंदगी में इसी इसी जन्म के अंदर अंदर अपने पैसों की दुनिया को मैजिकल बनाना है, तो आज का चैप्टर आपके लिए है। ये शुरुआती चैप्टर है, अभी इसकी 2 स्टेजेस और भी आएंगी आगे, पर आज का चैप्टर अगर आपने नहीं किया तो वो 2 स्टेजेस कोई काम नहीं कर सकती आपके लिए। आज का चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करके इस चैप्टर को और इसके 10% प्रैक्टिस को अपने दिन की, यानी कि 2.5 घंटा निकालना। अगर आप मिलियनर बनना चाहते हो तो ये कोई चॉइस नहीं है, ये कंपल्सरी है। ठीक है, मैंने इतना क्लियरली बोल दिया। पढ़े। 5वां दिन जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। हाँ, तो ये फॉर्मूला की शुरुआत है। ठीक है, आज मैं आपको ना एक फीलिंग चार्ट दूंगी, जो इसमें जो जैसे अभी ऊपर लिखा है, देखो उन्होंने क्या क्या बोला कि क्या क्या करने से आप ग्रेटफुल नहीं है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है। तो मैं आपको फीलिंग चार्ट दूंगी जिसके अंदर प्लस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव फील करना किसको कहते हैं, और नेगेटिव सोचना, नेगेटिव फील करना किसको कहते हैं। अगर आप नेगेटिव रहोगे, जैसे कि चिंतित, चिंतित मीन्स वरी करोगे, जेलिसी करोगे, आप डेस्पेयर में जाओगे, हताश हो जाओगे, डिसअपॉइंटेड होगे, आप हर समय मतलब वरीड रहोगे। शंकालु मीन्स कि वो जो डाइसी लोग होते हैं, हर समय मतलब किसी ना किसी में फियरफुल रहना या डाइसी रहना। अगर इस तरह से कोई भी नेगेटिव काम सोच रहे हो या फील कर रहे हो या बोल रहे हो, किसी के साथ बात भी कर रहे हो, तो आप अपने धन के लिए, जो भी धन है उसके लिए ग्रेटफुल तो नहीं हो, है ना। किसी तरह की कंप्लेनिंग करना, इरिटेशन करना, वाद विवाद करना, कुंठित होना, मतलब किसी भी तरह के अंदर उसके अंदर सैडनेस, डिप्रेशन लेके आना कि पैसे तो है ही नहीं, खर्च हो गए, खत्म हो गए। देखिए, पैसे के बारे में समझिए इस बात को, पैसा इज एन एनर्जी। आप जो भी रुपीज, डॉलर या जो भी जिस भी कंट्री में रहते हो, आप जो मर्जी उसकी करेंसी को यूज कर रहे हो, पर पैसा अपने आप में एक एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा सेम, जैसे हमने कल सेहत पे किया, परसों रिश्तों पे किया, आज हम जिस भी करेंसी को आप यूज करते हो आप उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के ऊपर एनर्जी को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना अगर आर्थिक जीवन बेहतर करना है, इंस्टेड ऑफ बदतर, बदतर किसे कहते हैं कि आज आपके पास 1,000 रुपए हैं और वो भी खर्च होते चले जा रहे हैं, या चोरी हो गए, गुम हो गए, या कहीं पे खर्चा हो गया। खर्चा होना, आपके पास जब पैसा आता है ना, तो पैसे के 2 तरीके होते हैं। मैं ना बचपन में अपने बच्चों को सिखाती थी कि अगर आपको सच में अमीर बनना है ना, तो 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, कमा के,
नंबर 2, बचा के। कई लोग कमा ही नहीं पाते और कई लोग बचा नहीं पाते। और अगर आप दोनों कर पा रहे हो, आप कमा भी अच्छा रहे हो और बचा भी अच्छा रहे हो, मतलब यू आर सेविंग वेरी वेल, तो आप धीरे 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 एड ऑन करते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। एंड व्हेन आई एम सेइंग सेविंग वेरी वेल, व्हाट आई मीन इज नॉट कंजूसी, व्हाट आई मीन इज बीइंग मनी स्मार्ट। मनी स्मार्ट का मतलब होता है कि अपने पैसे को कहाँ खर्चना है, कहाँ नहीं खर्चना, कहाँ पे बचाना है, कहाँ नहीं बचाना। आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखो, जो आपको बेस्ट टू बेस्ट करना है करना, पर अपना दिमाग भी यूज करो। जहां वेस्ट हो रहा है, वेस्ट मतलब आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ना वेस्टिंग किसे कहते हैं। तो इस यूनिवर्स में ना रिसोर्सेज की का ग्रेटिट्यूड जब आप करते हो तो आप माइंड स्मार्ट भी बनते हो। मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ पानी का ग्रेटिट्यूड करो 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 करो, हाँ, और बाद में आपका पानी बहता जा रहा है, नल के खुले पड़े हैं, कोई बंद नहीं कर रहा, पानी वेस्ट हो रहा है, पानी यूज कर रहे हो ठीक है, पर पानी वेस्ट हो रहा है, तो ये ग्रेटिट्यूड तो नहीं है ना उस पानी का। अगर आप भोजन का ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो ऑब्वियस जितना खाना है उतना ही डालोगे ना प्लेट में, अगर आप छोड़ के आ गए वहां पर तो वेस्ट हुआ है ना। तो वेस्ट अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली समवेयर इट्स नॉट ग्रेटिट्यूड। अगर आप मेरा ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो आप मेरी इज्जत भी तो करोगे। आप मुझे वेस्ट थोड़ी ना करोगे, आप मेरा टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप मेरे लिए शुक्रगुजार हो। सिमिलरली सेम रूल अप्लाइज टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, बी इट मनी बी इट एनीथिंग। तो अगर आप पैसों की दुनिया के अंदर ग्रेटफुल हो तो आप पैसे की इज्जत भी करते होगे। और ये हमारे हमारे परंपराओं में सिखाया गया है। जैसे कि अगर पैसे से रिलेटेड कोई कपड़े भी हैं, इवन भोजन भी है, इवन कहीं पे भी आप एक्सपेंड कर रहे हो, हाउ मच यू कैन बी इन पॉजिटिव एनर्जी, ओके, हाउ मच यू कैन बी इन द ग्रेटफुल एनर्जी। जैसे लक्ष्मी माँ का रूप क्यों बनाया गया था, ताकि आपको एक आदत बने कि लाइक लक्ष्मी माँ के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके लिए कृतज्ञ रहना है, कैसे उनके लिए इज्जत करनी है, कैसे उनके लिए आप बहुत रिस्पेक्टफुल हो सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें हमें पहले से सदियों से सिखाई जा रही हैं, हम भूल गए, हमारी प्रॉब्लम है। पहले कभी कोई पैसा गिर जाता था हम उठा के उसको मत्थे से लगाते थे, याद है कि हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट। कभी कोई पैसे पैसे को पैर लग गया, पैसा नीचे गिर गया, 1 रुपया सिक्का भी गिर जाता था तो हम उसको उठा के इज्जत से वापस रखते थे। ये नहीं कि पैसे को ठोकर मार के निकल लिए। तो कुछ कुछ ग्रैटिट्यूड की जो चीजें होती हैं ना, वो आपके आपके बिहेवियर में दिखनी भी जरूरी है। आपके बिहेवियर के अंदर कि हाउ मच यू आर रियली केयरिंग फॉर इट। केयरिंग, अगर किसी बीवी को या गर्लफ्रेंड को आप प्यार करते हो, ग्रेटफुल हो, तो उसकी केयर भी तो करोगे ना, है ना। उसको 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 कई चीजों से बचा के भी रखोगे। अगर वो सड़क पे चले तो ठोकर मार दोगे नहीं, आप उसकी सेविंग भी करोगे, उसको सेफ गार्ड भी करोगे, उसको उसको केयर भी करोगे। व्हाई एम आई टेलिंग दीज थिंग्स, बिकॉज पैसों की दुनिया में हमें कई बार पता नहीं होता कि हमने गलती क्या करी है। कई बार आप पैसे के लिए केयरलेस हो गए हो, ये भी पैसे की एक तरह की बेइज्जती है। हाँ, आप पैसे के लिए केयरफुल हो, केयरिंग हो, दिस इज वेरी गुड, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग कंजूसी, आई एम सेइंग बीइंग स्मार्ट। अपने दिमाग को यूज करो और देखो कि जो अभी हम कर रहे हो पैसे की पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो दिस इज हाउ वी ऑल कैन बी अलर्ट ना, तभी तो एक्सरसाइज काम आएगी, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो। पढ़े। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन कृतज्ञ, आप कृतज्ञ वर्ड को अनग्रेटफुल भी बोल सकते हो, थैंकलेस भी बोल सकते अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। हो। अगर आपको इस समय कुछ पॉकेट मनी मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी आपको 5,000 रुपए की पॉकेट मनी देते हैं महीने के, या आपको बॉस आपको सैलरी देता है, या आपके पार्टनर्स आपको शेयर देते हैं, अभी जो भी है, और आप ये सोच रहे हो कि अरे मेरी सैलरी बहुत कम है, अरे मेरी पॉकेट मनी बहुत कम है, अगर आप ये सोचोगे कम है या पर्याप्त नहीं है, तो ये एक तरह की कंप्लेन है। आपके हस्बैंड आपको चाहे घर खर्चे के पैसे देते हैं और आप सोचते हो कि बहुत कम है, या आपको प्रॉफिट आ रहा है अपनी दुकान से और आपको लगता है बहुत कम है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है या कम है, तो आप किसी अबंडेंस माइंडसेट में नहीं हो, आप स्केर्सिटी माइंडसेट में, और कभी भी आप अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। व्हाई? बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आपने अपने जीवन में जादुई ढंग से पैसा बढ़ाना है, मतलब आई रिमेम्बर वेरी वेल व्हेन आई यूज्ड टू बी गिवन पॉकेट मनी। हमारे घर, हमारे जमाने में पॉकेट मनी, मतलब मेरे मम्मी पापा पॉकेट मनी देते थे, तो जैसे कि महीने का 100 रुपया, बाद में जब हम बड़े हो गए तो 150 रुपया। अब 150 रुपया कौन बोले उनको कि भैया पूरा नहीं पड़ता है,
कि मतलब कि, और वो भी कॉलेज में बस से आना जाना, फिर वहां पे कॉलेज की कैंटीन में भी कभी कुछ समोसा खा लो, हाँ, या फिर कभी कभार तो कोई कपड़े भी खरीदने का मन कर जाता था, जबकि अभी कपड़े खरीदने का कोई बजट नहीं आया क्योंकि दोनों सैलरीड पीपल थे। तो फिर भी मन करता था, जैसे सारे फ्रेंड्स गए, सीपी गए, तो मन करता था हम भी कुछ खरीद ले। तो ऐसे करते कराते पता चला कि यार 150 रुपए तो कम पड़ने लग गए हैं अब, क्योंकि आई वॉज इन साउथ कैंपस, वहां पे लड़कियों का लाइफस्टाइल ये अलग था, मतलब कपड़े कुपड़े पहनने का स्टाइलिंग भी बहुत अलग होता है। तो मतलब इन वेज अच्छा था, फैशनेबल था, तो मुझे भी ज्यादा कपड़े की जरूरत पड़ने लग गई। तो आई स्टिल रिमेम्बर द मोमेंट आई हैड इट कि लाइक पैसे कम पड़ रहे हैं, तो मैंने अपने दिमाग को ये अभी फिलहाल काफी है, अब सोचते हैं कैसे पैसे बढ़ाने हैं। तो मतलब आई नॉट इवन हैव अ सिंगल आयोटा ऑफ माई मेमोरी जहां पे कभी मैंने सोचा हो कि पापा मुझे कम पॉकेट मनी दे रहे हैं, मम्मी मुझे कम पॉकेट मनी दे रही है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था दे आर गिविंग मी वट एवर बेस्ट दे कैन डू, वो मुझे दे ही रहे हैं ऑलरेडी। अब मुझे देखना है कि अगर मुझे इसको आगे बढ़ाना है तो पहले तो हम ओके, नो कंप्लेंट्स फॉर देम, आई एम रियली थैंकफुल कि वो मुझे दे तो रहे हैं हर महीने मेरे को पॉकेट, और मुझे कपड़े भी लेके देते थे, पर वो कभी कोई पार्टी आ जाए या कोई शादी आ जाए या कोई ओकेजन हो तब लेके देते थे। तो आई वॉज वेरी थैंकफुल कि घर का खर्चा है ना, दोनों काम कर रहे हैं हम 3 बच्चों को पालने के लिए, और जो भी दे रहे हैं बहुत दे रहे हैं यार। उसके अलावा अब देखते हैं आगे, तो आई वॉज वेरी क्लियर कि यार मुझे भी ऐसे ऐसे वाली जैसे लिवॉइस की जीन्स पहननी है फॉर एग्जाम्पल। उस जमाने में 3000 रुपए, मतलब पता नहीं कितने की होती, बहुत ही अजीब सा अमाउंट होता था। तो पर मुझे पहननी है क्योंकि मेरे को मन है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी मतलब कई बार पहनती है, और मेरे को कंपैरिजन नहीं है, बट आई लाइक टू वियर, आई वांट टू ट्राई, क्योंकि उससे पहले हम लोग जीन्स लेते थे मोहन सिंह पैलेस से, तो वहां पे तो मिल जाती थी 200-300 की अच्छी जीन्स। तो उन पर एक मन में आया कि यार पहन के देखने का मन है। तो ऐसे करके आई स्टिल रिमेम्बर वो मोमेंट जब मैंने अपने जिंदगी में फील किया कि अब थोड़े और पैसों की जरूरत है। डिड आई हैड एनी कंप्लेंट फॉर एनीवन? नो, आई वाज वेरी क्लियर, आई वांट मोर मनी बट नॉट कंप्लेनिंग। एंड द मोमेंट आई वाज क्लियर, आई थिंक वो फर्स्ट स्टेप था मेरी लाइफ में जो जहां पर मैं बच गई, बाल बाल बच गई। कई बार हम अपने पेरेंट्स के लिए या उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में या अपने बॉस के बारे में या अपने अपने क्लाइंट्स के बारे में नेगेटिव सोचकर अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आपके पास इस समय अगर 25 पैसे भी हैं, 5 रुपए भी हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता है धन के लिए उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं होने का मतलब यही होता है कंप्लेन कर रहे हो, जेलसी कर रहे हो, वरी कर रहे हो, फियरफुल हो रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो कि पॉजिटिव नहीं है। तो उसके पास जो भी है ना वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये इस यूनिवर्स का सेट रूल है, क्योंकि पैसा सिर्फ यूनिवर्स दे रहा है, बाकी लोग तो सिर्फ चैनल्स हैं। आपके माता पिता बॉस क्लाइंट तो सिर्फ एक चैनल है, यूनिवर्स के साथ आपकी डीलिंग चल रही है इस समय। जब आपके पास जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको ये बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप ये काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। हाँ, तो आपके पास जितने मर्जी कर्जे हो, जितनी मर्जी नेगेटिव सिचुएशन हो, अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ भर भर के बदलना पड़ेगा। क्योंकि आपने ना जाने, जैसे कि मैं अपना बता रही हूँ, मैं आज की डेट में आई कैन से इन द एरिया ऑफ मनी आई हैव अबंडेंस। अबंडेंस मैं किसको कहती हूँ? जब जितना मुझे चाहिए, जितना भी मेरा खर्चा है या मेरी जरूरत है, अगर मैं अगले 3 साल तक कोई काम ना भी करूं, मैं बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठी हूँ और मेरा लाइफस्टाइल सेम है, मैं यही खर्चे कर रही हूँ, मैं ऐसे शॉपिंग कर रही हूँ, मैं ऐसे फ्लाइट्स में घूम रही हूँ, मैं ऐसे होटल्स बुक कर रही हूँ, और मेरे पास इनफ पैसा है एटलीस्ट 3 टाइम्स, मतलब जो भी मेरी करंट के साल का खर्चा है उसका 3 गुना मेरे पास पड़ा हुआ है, मतलब मेरे पास अपने अपने पास हैंडी पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। और उसके अलावा अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में मेरे को कभी ओल्ड एज के अंदर जरूरत पड़ सकती है, इंश्योरेंस की जरूरत या मेडिकल्स की जरूरत वगैरह वगैरह, या कभी किसी रिलेटिव्स को जरूरत पड़ सकती है आसपास जो मेरे, तो उसके लिए भी मेरे को लगता है इतना अमाउंट होना चाहिए टू सपोर्ट माई सेल्फ और माई हेल्थ और टू अदर्स। तो अगर मेरे पास वो भी है, हाँ वो भी पड़ा हुआ है, उतना भी मैंने रख लिया। तो मतलब अबंडेंस माइंडसेट में आना आपका काम है। अगर अब मैं ये बोलूं कि अरे मेरे पास तो 100 करोड़ रुपए नहीं है, मेरे पास तो मेरे तो फलाने के पास 100 करोड़ है, मेरे पास 100 करोड़ नहीं है, अभी भी 100 करोड़ नहीं है, तो मैं तो स्केर्सिटी माइंड सेट्स में चली गई ना। तभी आज जब बेटा जी ने आपको शुरू में एक्सरसाइज कराई है सेशन से पहले ही, कि अपनी एक एक चीज, चाहे वो शॉर्ट टर्म खर्चा है जब भी फीस देनी है, ग्रोसरी खरीदनी है, चाहे आपका मिड टर्म खर्चा है, चाहे लॉन्ग टर्म खर्चा है, सारी की सारी लिस्ट बनाओ और फिर देखो उसको कैसे डिवाइड करना है। अगर आपने घर खरीदना है, उसकी ईएमआई है सपोज 1 लाख रुपए महीने की, तो आपका मंथली इनकम, मंथली जो आपको पैसे मिले वो कितने होने चाहिए? मे बी 5 लाख, मे बी 2 लाख, जो भी है। पर आपको पता हो कि मैंने जो 2 लाख रुपए अपने लिए अट्रैक्ट करने हैं, मेरे को उसके खर्चे क्या है,
हो सकता है आप हर महीने एफडी बनाना चाहते हो, हर महीने कोई गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप हर महीने 1 तोला सोना सोना खरीदना चाहते हो, तो ठीक है, लिख दो ना उसको 70,000 रुपए साथ में, कि 70,000 रुपए गोल्ड इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। अब मे भी आप अपने बच्चों के फ्यूचर या शादियों के लिए कुछ करना चाहते हो इस वे के अंदर, मैं ऐसे करती थी तो इसीलिए मतलब पता रहना चाहिए ना कि आपके खर्चे क्या 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 है, और अगर वो लॉजिकल खर्चे, यूनिवर्स विल सर्टेनली ग्रांटेड, पक्का 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 आपकी झोलियां भरेगा 100%, प्रोवाइडेड ये फॉर्मूला ढंग से सेट करना शुरू कर दो। चलो पढ़ो फॉर्मूला क्या है आगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। पूरा दिन, और आज आज एमएमएम में जब हम 12 से 2 में मिलेंगे, आज मैं लूंगी क्लास, क्यों? क्योंकि पैसा मुझे बड़ा प्यारा लगता है, और मेरा सच में सपना है, सच में जिसको कहते हैं ना, लाइक रियली, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे मेरे फैमिली हो। अभी हम थोड़े दिन पहले अपने फ्रेंड के हाउस वार्मिंग में गए थे, घर उसने नया बनाया है, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी द लेविशनेस, द रॉयल लुक, द फर्नीचर, एवरीथिंग, जो ऑब्वियसली पैसे से ही बना है। तो मतलब चाहे मेरे रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, मेरे कुलीग्स हो, इवन मेरे एम्प्लॉयज भी जब होते थे ना, तो मैं हमेशा चाहती थी कि जो उनकी जरूरत है एटलीस्ट वो तो पूरी होनी चाहिए, जो उनके पैसों की जरूरत है। चाहे यू नो, बिकॉज एवरी ह्यूमन इज बोर्न टू लिव अ लाइफ ऑफ रॉयल्टी। आप यहाँ पे कोई तंगहाली का जीवन जीने नहीं आए हो। हाँ, बाकी हेल्थ में, रिलेशनशिप पे तो हम करेंगे ही, पर पैसे की दुनिया में तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं अगर आप अपना फॉर्मूला ढंग से सेट कर दो तो। ठीक है, पर फॉर्मूला ढंग से सेट करना होगा, क्या क्या आपको छोड़ना है और क्या क्या अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। तो आज हम 2 घंटे बैठकर डीपली प्रैक्टिस करेंगे 12 से 2 के अंदर। आज मतलब आई स्पेशली टुक आउट टाइम फ्रॉम माय रूटीन की नहीं, आज का एमएमएम मैं करवाऊंगी, ताकि आपको आदत पड़ जाए, अपने आप से आदत पड़ जाए कि मुझे रोज अपनी जिंदगी में चलते फिरते उठते बैठते, शुरू में तो लिख लिख के करेंगे, पर आगे बढ़ते बढ़ते तो पार्ट ऑफ योर लाइफ बन जाएगा ना। तो करना क्या, आगे पढ़े। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। हाँ, तो एवरीबडी अभी हम सिर्फ सोच के काम कर रहे हैं, ये आपको रिटर्न में करना है, मतलब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, ठीक है। तो आप बचपन में जाओगे, अभी हमें क्या लगता है कि आपको पैसा ना मिले तो रोटी कैसे आएगी, अगर पैसा ना हो तो मेरे बच्चों की फीस कौन देगा, पैसा नहीं होगा तो आज आपको यही लगता है ना, यस नो में भी, कि अगर पैसा ना होगा तो मेरे मेडिकल, मेरे डॉक्टर के बिल कौन देगा। तो पहले 1 मिनट के लिए इस फियर को दूर करने के लिए, इस यूनिवर्स को सच में बिलीव करने के लिए, सच में यूनिवर्स या जो भी, जिसको भी आप लक्ष्मी मां मानते हो, एक एक बार के लिए उस टाइम पे आपको जाना है जब आप ना तो कमाते थे। हाँ, ना आपके पास कोई सैलरी थी, ना आपके पास कोई बिजनेस था, ना आपके पास कोई भी नहीं था, कोई भी सोर्स नहीं था कमाने का। तब भी क्या आपके ये काम होते थे उस टाइम पर? आ- आपको लगता है खा पीना कितना मुश्किल है, हाँ, आटा कितना महंगा है, चावल कितना महंगा है, जो भी है, चलो अब आप कंप्लेंट कर रहे हो ना पैसे के बारे में, इसको साइड करो। अब एक बार हम पीछे जाते हैं, क्या आपके पास कभी ऐसा टाइम था बचपन में या कहीं पे जब आपके पास खाने पीने के लिए पर्याप्त भोजन था, से यस नो में भी? मतलब भाई, अगर आपने इस बचपन में गाजर मूली भी खाई है तो पैसे की तो आई है, रोटी खाई है तो पैसे की आई है। हर चीज में पैसा लगता है। आपने अगर गैस भी घर में, गैस पे खाना भी बनाया तो वो भी पैसा लगता है उसके अंदर। तो आपके पास पर्याप्त भोजन था, कोई तो अरेंज कर ही रहा था ना उस समय भी, जब आप पैसे नहीं कमा रहे थे। तो पहले तो अपने ऊपर से ये महान जो तख्ती अपने सिर पे लगा रखी है ना, ताज पहना रखा है कि मैं कर रहा हूं सब कुछ, मैं कर रहा हूं सब कुछ, इसको पहले उतारो। क्योंकि तब आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, तब भी आपके पास पर्याप्त भोजन था। आप बचपन में किसी मकान में रहते थे, कोई तो था ना जिस मकान का बनाया किसी ने, या घर बनाया, या किसी ने भाड़ा दिया, या अगर आप किसी अनाथ आश्रम में भी रहते थे तो किसी ने डोनेशन दी। तो कोई ना कोई तो पैसा लगा ही रहा था ना, पर आप रह रहे थे। मोस्टली आप में से सबके सिर पे छत थी बचपन में भी। क्या आप स्कूल गए थे? फीस किसने दी थी? तो कोई ना कोई तो था ना जो आपके स्कूल की फीस, आपके कोई भी कोर्सेज की फीस, कॉलेज की फीस। भाई, आप तो उस समय पैसा नहीं कमा रहे थे जब आप अपने स्कूल में सेकंड क्लास में गए थे, एबीसीडी वगैरह जब सीख रहे थे। तब भी कोई तो पैसे लगा रहा था ना, चाहे आपके मम्मी पापा, चाहे गार्जियंस, चाहे गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो गवर्नमेंट भी तो टीचर को सैलरी तो दे ही रहा है, आपको फ्री में पढ़ा रहा है, पर उसका तो खर्चा हो ही रहा है। तो कोई तो था ना जिसने आपकी शिक्षा को टेक केयर किया था।
आप हर रोज स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास मतलब स्कूल जाने के लिए कोई साइकिल थी? तो साइकिल किसने लेके दी? है ना। उसी तरह से अगर आप स्कूल जाते हो रिक्शे से या बस से या स्कूटर से या कार से, जो भी था, जो ऐसे ऐसे आपकी मम्मी छोड़ के आती थी चाहे, तो आपकी मम्मी भी छोड़ के आ रही है, तो मतलब कुछ तो ऐसा है ना जिसमें पैसे इंक्लूड है। चाहे आपको सड़क से भी ज्यादा, जूते जूतों के पैसे किसने दिए? अगर आप रिक्शे से जाते तो रिक्शे के पैसे किसने दिए? स्कूल के, है ना। तो आप कैसे जाते थे स्कूल? अपना अपना सोचो। आपके पास स्कूल का जो सामान होता है, जैसे कि बुक्स हैं, कॉपीज हैं, पेन है, लंच बॉक्स है, बॉटल है, जो भी आवश्यक चीजें होती थी, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह सब थी। पेंसिल बॉक्स कोई आसमान से तो टपके नहीं थी, कहीं ना कहीं से किसने तो पैसे खर्चे थे, तभी आपके पास पेंसिल बॉक्स थी ना। तो पैसे तो आपकी जिंदगी में शुरू से कहीं ना कहीं से आ रहे थे। आप कोई ना कोई तो खर्च रहा था, आपके ऊपर खर्च रहा था, कोई तो था। बट आपने, जब आपके ऊपर सारा खर्चा हो रहा है, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, हाँ, पर उस समय क्या आपको पता है कि आपने उसको थैंक यू कहना था? और अगर आप उस समय थैंक यू करते या थैंकफुल होते, तो आज आपके पास अबंडेंस बनी रहती। आज आपको ये लग रहा है कि मुझे कमाने पड़ रहे हैं, परंतु आपने बचपन में जब आपके ऊपर सब खर्चे आराम से आपके सेटल डाउन थे, तभी पॉजिटिविटी कर लेते। बचपन में क्या आप कभी कभी छुट्टियां मनाने के हिल स्टेशन या समुद्र तट पे गए थे? कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, कभी वैष्णो देवी, हाँ, और आपने कंप्लेंट करने के बजाय वहां पर जाके सच में रियलाइज किया कि कोई और पैसे खर्च रहा है आपके आपके ट्रेन के, आपके बस के या फ्लाइट के या मेटाडोर के या जो भी था, और आप मजे मना रहे हो। बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? मे बी कभी आपने केक काटा हो, तो केक किसने लेके आया? उसने तो पैसे लगाए ना केक के, पेस्ट्री के। जैसे बचपन में ना तो रसना बनती थी, हमारे घर में रसना बनती थी, या तो रूह अफ़ज़ा या रसना तो नहीं, मुझे रसना ज्यादा पसंद थी। तो रसना बनती थी और साथ में वो पेस्ट्री होती थी एक, और एक समोसा, एक चिप्स, कभी कभी टॉफी होती थी उसके अंदर, तो जो भी, और वो पेपर प्लेट में रख के बच्चों को मिलती थी। तो मतलब कि कोई तो पैसा खर्च रहा है ना। कमरे में जो लड़ियां वो कागज के वो रिबन जैसे टंगते थे, तो कोई तो पैसा खर्च रहा है ना। और जो मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं, किसी ने कभी लूडो दे दी, कभी किसी ने मोनोपली दे दी, कभी किसी ने जो भी दिया होगा, पेंसिल बॉक्स, या चाहे वो कोई भी गिफ्ट दिया है, पैसा तो लगा होगा ना। तो आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें आपको गिफ्ट में मिली हैं? आज तक जितने भी आपको गिफ्ट मिले हैं, कभी किसी ने सगन दिया, कभी किसी ने गिफ्ट दिया, उसका तो पैसा लगा है। पर क्या आप थैंकफुल थे? कभी आपने कोई कंप्लेंट तो नहीं कर दी बचपन में जब गिफ्ट मिले थे? अरे ये कैसी गेम है, ये कौन खेलता है, अरे ये तो टूटा हुआ दे दिया, अरे ये कौन खेलता है, अरे इससे सगन कम दिया। कितने लोगों ने कभी कंप्लेंट कर दिया है? क्योंकि गिफ्ट हो चाहे सगन हो, पैसा इंक्लूडेड है। पैसा इंक्लूडेड है, मतलब वो बोले सॉरी वो बोले सॉरी कि हाँ मैंने कभी गिफ्ट, अरे ये कैसा सूट दे दिया, ऐसा सूट कौन पहनता है, कैसा कलर है, कैसा मटेरियल है। कर तो नहीं दिया गलती से, क्योंकि हर चीज में पैसे इंक्लूडेड है। और क्या कर दिया आगे बढ़ते हैं। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्योंकि हर चीज, अगर पालतू जानवर आपने खरीदा है, चाहे उसको आप ब्रेड भी खिला रहे हो, तो अगर पालतू जानवर को पाल भी रहे हो तो भी पैसा लग रहा है ना। उसके गले में पट्टा डाला है तो पट्टा के भी पैसा लगता है। क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे, तब भी हर समय आपके पास कोई एक दो जोड़े तो थे ही ना। घर के कपड़े, बाहर के कपड़े, हमारे जमाने में ऐसा होता था। कितने लोगों को याद है ये घर के कपड़े हैं, पार्टी के कपड़े हैं मतलब कि जैसे स्कूल के कपड़े अलग होते थे ना, वैसे घर के कपड़े अलग होते थे। घर के कपड़ों में मतलब जो सिंपल और कंफर्टेबल क्लोथ्स होते थे, और पार्टी के थोड़े महंगे वाले कपड़े होते थे, जैसे थोड़े है ना फैंसी क्लोथ्स होते थे। आज के डेट में घर के बाहर के कपड़ों का कुछ वो ही नहीं रह गया। घर पे भी लोग वो दो दो तीन तीन हजार की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं घर पे अंदर, घर के अंदर। मतलब तब तो नहीं होता था ऐसे। घर पे तो हम सिंपल एंड है ना ठीक ठाक इकोनॉमिकल कपड़े पहनते थे, कि तुम सो रहे हो, उठ रहे हो, निचोड़ रहे हो, अपने क्या कर रहे हो उनके साथ। तो मतलब कि एक जमाना था जब हम सच में पैसे की वैल्यू को समझते थे और उसको तवज्जो देते थे। मम्मी ने ये कपड़े लेके दिए तो कैसे, अगर एक जोड़ा मिला साल का, दिवाली पे मिलते थे हमारे को ना, तो उसको पूरे साल संजो के रखना, मतलब कि हर एक कपड़े को प्रॉपरली साफ सुथरा करके, दाग लग गया तो साफ करके, फिर उसको प्रॉपरली तय करके गत्ते के डब्बे में डालना या पॉलिथीन में डालना, और अंदर संभाल के रखना जब तक कि अगली पार्टी ना आए। तो मतलब कि कितना, इफ यू रिमेम्बर दैट, पैसा तो लग ही रहा है किसी ना किसी का। बट क्या आपको पता था, कदर थी उन पैसों की जो आपके कपड़ों पे लग रहे थे? कभी आप मूवी देखने गए हो, कोई मैच देखने गए हो, कोई मेला देखने गए हो, दिवाली मेला, हाँ, या कभी कोई सीखा क्रिकेट, हारमोनियम, गिटार, या आपने किसी शौक को पूरा किया हो, मतलब कि आपको कोई भी, जैसे जिम गए होगे, या कोई ड्राइविंग स्कूल गए होगे, ड्राइविंग सीखनी थी आपको, किसने पैसे लगाए? कोई तो था ना जो आपकी हॉबीज के लिए भी पैसा लगा रहा था।
कोई भी हॉबी हो सकती है, कुकिंग सीखी हो, कभी कभी आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास गए और दवाइयां ली, मतलब कभी बचपन में याद है कभी बीमार पड़े हो और डॉक्टर के पास गए हो, तो कौन किसने दी डॉक्टर की फीस? कभी दवाइयां लियो केमिस्ट से, तो किसने दिए दवाइयों के पैसे? आज आपको दवाइयां डॉक्टर बड़े महंगे लगने लग गए हैं, हाँ, रिपोर्टें विपोर्टें जो भी होती है। बचपन में आपने भी तो डेंटिस्ट के पास गए हो, आप भी दंत के आपके भी दांतों में जो भी जरूरत थी सब हुआ है आपका, डॉक्टर के पास गए, दवाइयां हुई, आपका पूरा इलाज कराया गया, जो भी बचपन में मतलब जो भी जरूरत पड़ी उस समय, किसी ने तो पैसे लगाए थे। आर यू थैंकफुल फॉर दैट? तब थैंक यू करा इनफ? क्या आपके पास अनिवार्य अनिवार्य सामान थे जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, शैम्पू, साबुन, जो भी कंघी, जो भी चीजें होती हैं ना, टॉवल, या जो भी मतलब जो टूथपेस्ट, जो आजकल तो बहुत कुछ होता है, हेयर सीरम, ये क्लिपर, ये वो कितनी चीजें वॉशरूम में होती हैं, बचपन में भी तो थी ना। किसने दिए थे पैसे? कौन आपके टूथपेस्ट के लिए, टूथब्रश के लिए, साबुन शैम्पू के लिए आपको स्पॉन्सर कर रहा था? कोई तो पैसे लगा ही रहा था ना आपके साबुन शैम्पू पे तब भी, याद है? कभी आपने कार में यात्रा की हो, कभी ऑटो में बैठे हो, कभी कैसे भी आपने यात्रा की तो किसने टिकट खरीदी थी आपकी? बस में भी यात्रा करी हो तो किसने किसने टिकट खरीदी थी? कोई तो पैसे दे रहा था ना आपके आपकी कम्युनिकेशन, आपके ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कभी टेलीविजन देखते थे या फोन करते थे या बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे, बिल कौन देता था? बचपन में कौन देता था आपके फोन, बिजली, पानी का बिल? घर में अगर फोन लगा हुआ है, आप भी लैंडलाइन यूज करते थे, बिल कौन देता था? घर में आप भी पंखे की हवा खाते थे, बिल कौन देता था? आप भी पानी पीते थे, बिल कौन देता था? हाँ, कभी कोई आपने मिक्सी यूज करी, टीवी यूज करा, फ्रिज यूज करा, कौन खरीद के लाया? आप तो नहीं खरीद के लाया था टीवी, फ्रिज, मिक्सी, पर आपने यूज करी है। और अगर तभी हम कॉन्शियस रहते फॉर द अबंडेंस ऑफ थिंग्स वी आर गिवन ऑलरेडी, और हम थैंकफुल रहते, तो शायद आज भी हमारी जिंदगी अबंडेंस 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 से ही भरी होती। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और ये आपको सब कुछ मुफ्त मिली थी, मुफ्त। आपने तो खर्चा नहीं किया था फॉर श्योर। आपको इतनी कुछ चीजें फ्री में मिली थी, बचपन और किशोरावस्था, एडोलेसेंस को याद करने के पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। किसी ने तो मेहनत करी है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, गार्जियंस हैं, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। अगर आपने रोटी खाई है तो किसी ना किसी तो ने तो आटा खरीदा ही था ना। अगर आपने गुरुद्वारे में भी रोटी खाई है, लंगर में भी खाई है, तो गुरुद्वारे में भी तो जो दान करते हैं, है ना, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जो दान करते हैं, उन्होंने तो मेहनत से पैसे कमाए थे ना, चाहे उन्होंने दान करे हैं, चाहे आटा दान किया है, चाहे पैसे दान करे हैं, तो कोई ना कोई तो मेहनत कर ही रहा है, कोई ना कोई तो पैसा कमा ही रहा है। पर आपको वो चीजें फ्री में मिली है। पर आपको क्यों मिली है फ्री में? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ अच्छे काम किए ही होंगे। जो चीजें आपको अबंडेंस में मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसके लिए पॉजिटिविटी रखी थी, तभी वो मिले थे। अब वो लोग किसी को नहीं, ऑब्वियसली कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते, कभी पता नहीं है? कितने बच्चे सड़कों पर पड़े होते हैं, उनके सिर पे छत नहीं होती, पता नहीं है आपको? मतलब इतना इग्नोरेंट क्यों हो आप? कितने ऐसे बच्चे नहीं होते जो सड़क के ऊपर बस सड़क पे सोए पड़े हैं, उनके सिर पे छत नहीं, आपके सिर पे छत थी। तो किसी ने और ने छत बनाई, चाहे आपके पापा ने, चाहे दादू ने, चाहे किसी ने भी घर खरीदा होगा, प्लॉट खरीदा होगा, घर बनाया होगा, पर आपको तो फ्री में रहने को मिला है ना। पर आपको फ्री में क्यों मिला है? क्योंकि कभी ना कभी, किसी ना किसी वे में आप किसी ना वे में पॉजिटिव रह चुके हो, आप ग्रेटफुल रह चुके हो पास्ट में, तभी वो चीजें आपको अबंडेंस में फ्री में मिली हैं। और वो आगे भी मिलती रहती हैं हमेशा, अगर आप ये गलती ना करते। गलती क्या करी है हमने? कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड देना या पॉजिटिव एनर्जी देनी बंद कर दी थी, और हो सकता है उल्टी तरफ चल पड़े हो, यानी कि अबंडेंस से स्केर्सिटी की तरफ चल पड़े हो। क्या? कंप्लेंट करके, इरिटेट होके, कहीं किसी भी वे में नेगेटिव एनर्जी देके। हर उदाहरण को याद करना है, और याद अभी जब हम करेंगे क्या, जो हमने गलती करी है जिस वजह से हम उल्टी डायरेक्शन में चले गए हैं, अब हम वापस आएंगे तो अपने पास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वी विल स्टार्ट, जिसको इसको कहते हैं गो बैक इनटू योर मेमोरी लेन। अभी तो ऊपर 10-12 लिखे हैं, आज हम 12 से 2 के अंदर कम से कम 100-200 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपने जो लिस्ट बनाई है मॉर्निंग में ना, वो लिस्ट में अगर आज आपको सपना या आपको इच्छा रह गई है और वहां पे स्केर्सिटी है इस समय कि आपको फॉर एग्जाम्पल घूमने के लिए पैसे चाहिए, तो अगर आज आपको कहीं जाना, लंदन जाना है या शिमला जाना है, और आपको अभी लग रहा है कि पैसे कम है या पैसे नहीं है इसलिए आप नहीं जा पा रहे, तो 100% पास्ट में आप कहीं ना कहीं कभी घूमने गए हो, चाहे वो अपनी बुआ के घर गए हो, चाहे चाची के घर गए हो, चाहे आप इवन रानी बाग की मार्केट तक गए हो, पर आपके रिक्शे पे किसी और ने पैसा खर्चा किया है, आपके ट्रेवल पे किसी और ने पैसा खर्चा किया है। हो सकता है वो आपको किसी माता रानी के मंदिर ले गए हो, और वहां पर जो भी खाना खिलाया, वहां पे धर्मशाला में ठहराया, वहां पे जो भी आने जाने का खर्चा किया है, किसी ने किया है।
ओके, और आपने 100% कंप्लेंट करी है। अब हमने पहले फॉर्मूला समझ लिया क्या, हर एक कंप्लेंट को नलीफाई करने के लिए या उसको कॉम्बेट करने के लिए हमें कितने शुक्राने करने होंगे? एवरीबॉडी टेल मी। अगर आपने एक बार ये बोल दिया, अरे ये कैसा होटल है, अरे हमारी मम्मी पापा तो हमें धर्मशाला में ही ठहराते हैं, ये कोई होटल है ठहरने के लिए? आपने एक कंप्लेंट करी, हाँ, अब आपको एक अच्छे होटल में ठहरने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए थी, आप उससे 10 कदम पीछे चले गए हो। और अगर आपने बहुत सारी कंप्लेंट करी है पैसों के लिए, कपड़ों के लिए, अरे हमारे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है, अरे हम तो ऐसे घर में रहते हैं, हमारे दोस्तों का घर तो कितना अच्छा है, हमारे घर में तो ये नहीं है, हमारे पास तो कार नहीं है, हमारे पास तो फोन नहीं है, तो मार लो मुंह पे थप्पड़ 6। क्यों? क्योंकि हर कंप्लेंट आपको खड्डे में नीचे 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 गहराई में लेती चली गई है। और अगर आज आपकी जिंदगी में कर्जे हैं या अंधेरा है पैसों की दुनिया में, क्योंकि खड्डे में तो अंधेरा ही होगा ना, पाताल में तो अंधेरा ही होगा, और क्या होगा? तो अगर रोशनी की तरफ आनी है तो उस पाताल के खड्डे को भरना भी तो आपका ही काम है ना। तो इसलिए जुट के अब काम करना शुरू करेगा, क्यों करना होगा? क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज का नाम ही है मिलियनर, है ना। तो हमारे को अब मिलियंस 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 ऑफ शुक्राने करने लग के 2 घंटे तो मिनिमम चाहिए आपको अब इसके बाद, ठीक है, आज के बाद जैसे भी करके अपने आप को इस आदत में डालना पड़ेगा कि मेरे को अपने अतीत में ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ेगा, दवाई, डॉक्टर, है ना, कपड़े, इवन एस आप किसी पार्लर में भी, मम्मी ने कोई कटिंग कराई, बार्बर शॉप पे लेके गया, कोई आपके पापा आपको नाई के पास लेके गए, उन्होंने चाहे 10 रुपए दिए आपकी कटिंग के लिए, पर कटिंग तो कराई है ना। आज के डेट में आप क्यों नहीं सैलून जा पा रहे, क्यों नहीं स्पास में जा पा रहे? क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं किसी पैम्परिंग को आपने इग्नोर किया, या आपने बोला ये कैसी कटिंग करा दी है मेरी, ये कोई कटिंग है? ऐसे किसी भी गंदे पार्लर में ले गए आप, मेरे को कैसी कटिंग करा दी? पैसे लगाए अगले ने यार, हाउ कैन यू बी इग्नोरेड, हाउ कैन यू बी थैंकलेस? अगले ने पैसे लगाए हैं तुम पर, और तुम्हारा काम था थैंकफुल होना पैसे के लिए। अभी इस चैप्टर में हम पैसे के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। हाँ, और ये मैं गारंटी देती हूँ, मैं कितने लोगों ने जब से आपने मैजिक बुक या इसकी प्रैक्टिस से जुड़े, आपको पैसों की दुनिया में पॉजिटिविटी हुई है? मतलब वो बोले मनी 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 मैजिक, वो लिखेंगे मनी मैजिक, मनी मतलब कि आपको पैसों की दुनिया में, देखिए तभी हमने आज आपको अपनी लिस्ट बनाने को बोला। आप पहले एक पर्टिकुलर लेवल पे थे, ओके, और जब आप पैसों की दुनिया में ना, आप गिन सकते हो कि पहले मेरी महीने की कमाई थी फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए, और आज के डेट में महीने में 30,000 रुपए कमा रही हूँ, या मेरे को मिल रहे हैं, या मेरे को जो भी है। मतलब आप अगर इसके जिनको नहीं मिली, वो ग्रोथ नहीं मिली, या वो सफलता, या वो समझो कि वो चेंज नहीं मिला, या वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिली, 101%, उनका खड्डा इतना गहरा था, इतना गहरा था। पाताल में भी तो 7 लेवल्स होते हैं ना। अब आप 1 मीटर नीचे गए हो जमीन, नॉर्मल ग्राउंड से 1 मीटर नीचे गए हो, कि 1 किलोमीटर नीचे गए हो, कि 10 किलोमीटर नीचे गए हो, अभी मुझे तो पता नहीं है। पर आप हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, और बार बार कृतज्ञ होते रहे पैसों से रिलेटेड चीज के लिए, जब तक कि खड्डा भर ना जाए। आप ग्राउंड लेवल पे आओ और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करो। भाई अडानी अंबानी बनने के लिए तो आइए पूरी दुनिया में आप लोग, जो आपकी वाली जरूरत है अकॉर्डिंगली। अब आप मुझसे पूछो मैडम आपने, मेरे को अडानी अंबानी बनना ही नहीं है मतलब मुझे पैसों की दुनिया में जितना है मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को उस तरफ जाने का कोई वो ही नहीं है। क्या पता आपका शौक हो, क्या पता आपका पैशन हो उस तरफ बढ़ना। और जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हो, शुरू शुरू में महसूस करने के लिए आपको बार बार लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचने और लिखने की एक्सरसाइज को बाईपास कर जाओगे, आप महसूस करने वाली अवस्था तक नहीं पहुंच पाओगे। मैं बार बार बता रही हूं आपको। तो लिखना, सोचना, बोलना, इसके ऊपर 2-2 घंटे अब हम कंटिन्यू लगाने वाले हैं, ओके, ताकि पैसों की दुनिया में तो हम बहुत गहराई से अंदर तक जाएं और अपने खड्डों को भर दें, ताकि विद इन दिस 30 डेज जो हमारा और एक्सरसाइज है, इसी में आपको जादू दिखने शुरू हो जाए। कई लोगों को तो 1-2 दिन में ही जादू दिखने शुरू हो जाते हैं, जिनके खड्डे गहरे नहीं होते उनको बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो भविष्य में, मतलब भविष्य मीन्स कल, परसों, तरसों, जो भी फ्यूचर है, सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है, और हम भी गारंटी देते हैं। पर आपको लग के करना होगा, ये गारंटी आपको हमें देनी पड़ेगी एक्सरसाइज के लिए, जादुई धन के अभ्यास को। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर ये लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आप रुपीज का, जिस भी कंट्री में आप रहते हो, जिस उसी का आप करेंसी ले लेना, ठीक है, और उस पर एक चेप्पी लगा, मतलब ऐसे पहले कागज
पे लिख के फिर उस पे चिपकाना, नोट पे डायरेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है। ये उस पे लिखना है। करना क्या है इसका, पढ़े। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। हाँ, तो ये जो पैराग्राफ है ना, मैं मेरे बोलने से फायदा नहीं है, आप खुद से पढ़ना बार बार। अगर आप अपनी आर्थिक परिस्थिति, जो भी इस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें स्पीड स्पीड करना चाहते हो, स्पीड है ना, तो आपको ये ध्यान से अपने आप से पढ़ना है। क्या करना है, नंबर एक, पिछली वाली एक्सरसाइज जिसमें हम पास्ट की हर चीज के लिए ग्रेटफुल होकर लिखेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, है ना, महसूस करेंगे, नंबर एक वो करना है पास्ट के लिए। अब क्या करना है, जो आपने ये नोट है, जैसे मैं दिखा रही हूँ इस समय, तो नोट पे आपने ये लिखा, ये आपने स्लिप चिपकाई है ना, ये हिंदी में मैं दिखा रही हूँ इस समय। तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अब क्या करना है तो नॉर्मल नोट पर आपने इस पे कृतज्ञता के लिए जो कृतज्ञता पेस्ट करी है, इसकी वजह से ही चमत्कारी हो जाएगा। ये जादुई नोट बोलेंगे इसको, मैजिक मनी बोलते हैं। हमारी जितनी भी हम रिट्रीट्स करते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, उसमें मनी एक्टिविटी हम स्पेशली उस पर जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि मनी को अट्रैक्ट करना टेंजिबल वे में बहुत स्पष्टता से दिखाई देता है ना। क्योंकि अभी आपको पता है आपके पास इस समय 1 लाख रुपए हैं, और आपको पता चलेगा जब 2, 5, 10 होते चले जाएंगे। जब ये कम हो रहे हैं तो भी आपको पता चल रहा है, जब ज्यादा हो रहे हैं तो भी पता चल रहा है, ठीक है। तो इट इज टेंजिबली नोटिसेबल। नाउ, कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर, मैं कहूंगी अलार्म लगा लो, दिन में 10 बार कर लेना। वैसे तो 10 से ज्यादा बार भी कर सकते हो, जितना भी करना है। करना क्या है, इस नोट को अपने हाथ में लेना है और अपने लिखे हुए शब्द को पढ़ना है। जो आपने इस पे लिखा है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, ये आपने फील करना है, ठीक है। अपने लिखे हुए शब्द पढ़े और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। और आप जब पास्ट की एक्सरसाइज कर रहे होगे ना, तो ये कृतज्ञता धीरे धीरे नेचुरली आनी शुरू हो जाएंगे। और जितना ज्यादा आप ऑनेस्टी से करोगे, जितना ज्यादा फीलिंग्स लेके आओगे, उतना आप फास्ट 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 अपनी लाइफ में चेंज होते हुए देखोगे। तो दोनों एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस पे करने हैं। नंबर एक, अपने पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स लिखने, शुरू शुरू में लिख के करने हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोगों के खड्डे काफी गहरे हैं, तो बोल के या मन में सोचकर इतना जल्दी असर नहीं आता। तो लिख लिख के करोगे जल्दी असर आएगा, क्योंकि लिखते हुए तो आपको सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। जब आप लिख रहे हो बिना सोचे कैसे लिख सकते हो? तो कुछ भी सोच रहे हो कि अच्छा मेरे को और किस चीज के लिए मेरे पे खर्चा हुआ, और किस चीज पे मेरे लिए खर्चा हुआ, तो आप सोचोगे, सोच के लिखोगे और साथ साथ में बोलोगे भी। तो आपका सोचना, लिखना, बोलना, तीनों स्टेप्स उसमें असाइनमेंट में कवर हो जाएंगे। अब फीलिंग धीरे धीरे अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। जब फीलिंग आनी शुरू हो गई, उसी समय नोट को हाथ में पकड़ा, वाई वी आर होल्डिंग नोट इन द हैंड, हम इस पैसे को पॉजिटिव एनर्जी पास कर रहे हैं, क्योंकि ये टेंजिबल दुनिया की चीज है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो एंड में पूछ लेना। आगे, आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। तो आज आपने पूरी लिस्ट बना ली है ना कि आपको पैसा क्यों चाहिए। जैसे आपको लिख सकते हो मुझे फ्रिज लेना है, मुझे कार लेनी है, मुझे ये लेना है, जो भी है। अब देखिए, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कृतज्ञता करने के लिए भी अलर्ट रहना है, ये नोट वाली एक्सरसाइज करने के लिए भी अलर्ट रहना है। और जैसे जैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आपको समझ नहीं आएगा, पर आपकी जिंदगी में कुछ कुछ जादू या कुछ कुछ चीजें जिसको आप समझ नहीं पाएंगे हो कैसे रहा है, इट्स ओके। पर आप अलर्ट रहोगे तो आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे। जैसे कि अगर सपोज आपको मिक्सी चाहिए, हाँ, आप बार बार सोच रहे हो मिक्सी ग्राइंडर ये 10,000 रुपए का आता है, या हमको 10,000 चाहिए। हो सकता है आपने किसी मॉल में सिर्फ वैसी एक नॉर्मल कोई फॉर्म भरा और आपकी फ्री में, मतलब लॉटरी में मिक्सी निकल आए। अब आप बोलोगे हैं ये कैसे हुआ? भैया उस समय थैंक यू कर लेना बस।
कोई डिस्काउंट मिल गया, आपने एक ड्रेस खरीदना, बड़े दिन से सोच रहे हो कि हाय मेरे को वो लेनी है लेनी है लेनी है, वाओ वाओ वाओ, अब वो 20,000 की ड्रेस है, आप सोचिए यार लेने, और एकदम से आपके पास पैसे कितने, 9,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, पर आपको 11,000 और चाहिए, तो वो ड्रेस या तो वो गिफ्ट कर देगा या डिस्काउंट पे मिल जाएगी। आप बोलोगे पर हो कैसे है, क्योंकि आपने उस सभी के सभी खर्चे जो आपको करने हैं, जिसके लिए आपको पैसे चाहिए, आपने सब कुछ रिटर्न में लिस्ट बना दी है। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, प्लीज एक एक चीज, हाँ बाद में आप ऐड करना चाहते हो करते जाओ, हो सकता है कल को आपको पैसे चाहिए हो किसी और चीज के लिए, तो लिख दो उसके अंदर, वो एक आपकी ना पैसा क्यों चाहिए उसकी लिस्ट भी रेगुलर बननी चाहिए। आपके दिमाग में चीज रहती है, इसलिए आप कई बार टेंशन में आ जाते हो, जब लिखोगे ना तो आपका दिमाग खाली रहेगा, और दिमाग को यूज कीजिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड के लिए। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आ गया, बाकी हम डिटेल में 12 बजे बात करेंगे कि कैसे कैसे हर चीज के ऊपर आपने कैसे 10-10 जैसा शुक्राने करते हुए वहां पर नेगेटिविटी को डिसअपियर करना है, और पॉजिटिविटी को और वहां पर ऐड ऑन करना है, ताकि आपकी जिंदगी में स्पीड बहुत स्पीड में बढ़ जाए। आगे। आज के बाद आप अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। ये लाइन ना टैटू करा लो, अगर आपको जिंदगी भर पैसे की अबंडेंस चाहिए तो ये लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है। क्या? धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता, अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, ओके, का अर्थ है धन की प्रचुरता। अगर आपको अबंडेंस ऑफ मनी चाहिए तो आपको अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी ही करनी है, सिंपल। अभी अभी हम शुरू में जैसे शुरू में तो कहते हैं धक्का मारना पड़ता है, कई लोगों की गाड़ी तो बहुत खड्डे में फंसी पड़ी है, तो हमारे को आपको 2 के बजाय 3 बार भी हो सकता है, 3 घंटे की भी जरूरत पड़ जाए शुरू शुरू में, पर एक बार आपके सब हालात अच्छे हो गए, आपको पैसा मिलना शुरू हो गया, उसके बाद जरूरी नहीं कि हर रोज 2-2 घंटे करना है, आप चलते फिरते रोजमर्रा में खाते पीते भी आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आप अभी सांसें ले रहे हो ना, उस समय ग्रैटिट्यूड करना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हर समय आपको दिख तो रहा है कि आप पैसे, अब अभी जैसे जो लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, तो इनको फिर हमने एक नई आदत दी थी कि जब भी आप कोई पैसा खर्च रहे होते हो तो भी आपके हाथ में पैसे हैं, है ना, चाहे आप किसी को जी पे कर रहे हो, चाहे गूगल पे, वो जो भी होती हैं ऑनलाइन पेमेंट्स, आप कोई पेमेंट भी कर रहे हो, आप कोई कैश भी दे रहे हो, तो उस समय देते हुए और लेते हुए इस समय अलर्ट रहना ग्रैटिट्यूड करने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर भी इनको ऐड ऑन कर देता है, पर ये आगे हम सीखेंगे, अभी तो हमें पास्ट के खड्डों को पहले भरना है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम करंट में तो बहुत कुछ ड्रामा कर रहे होते हैं, पर पास के खड्डे ही इतने गहरे होते हैं कि मतलब पताल बना हुआ है, पताल में नरक बना हुआ है पैसों की दुनिया के अंदर, और जिनके नरक नहीं भी है आपको भी करना है, क्यों? क्योंकि पैसा कमाओ यार, अगर ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा तो किसी के काम आ जाएगा। हाँ, दुनिया में कितने लोग जो उनको आपके पैसों की जरूरत है, जैसे कि हो सकता है किसी को किसी अच्छे काम के लिए जरूरत हो, किसी एनजीओ को जरूरत हो, कोई अनाथ आश्रम में जरूरत हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, नॉट लालच, बट अगर आपके पास अच्छी कमाई के अच्छे पैसे आते हैं, उसको वन छक्को ना यार, वन छक्को मतलब शेयर इट विद द पीपल हु रियली रियली नीड इट, ओके, शेयर इट विद द पीपल। तो पैसा कमाना और उसको अच्छी तरह से यूज करना, उसकी स्टार्टिंग कहाँ है? यहां से, इन 2 एक्सरसाइजेस से आगे बढ़े। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। हाँ, तो अगर अब देखिए, आपको कोई भी चीज है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो एंड में पूछ लेना, आपको कोई भी चीज में बार्गेन करना है, कोई भी चीज में नेगोशिएट करना है, कर लो, आपको अपने रोजमर्रा में जो दुनियादारी के काम होते हैं करना है, कर लो, परंतु उसमें पैसे को इंक्लूड मत करो। समझो, ध्यान से समझो, पैसे मींस आप पैसे की, जैसे कि अगर मैंने किसी रिक्शे वाले से बार्गेनिंग करनी है, वो कह रहा है 50 रुपए, मैं कह रही हूँ नहीं 40 रुपए लगेंगे, तो आप, पर मैं अंदर से क्या फील कर रही हूँ? स्केर्सिटी? नहीं नहीं, आई एम जस्ट डूइंग अ नॉर्मल दुनियादारी वाली बातचीत। ठीक है, कई लोगों को आदत होती है करने के लिए, परंतु जब आप पैसा दे रहे हो ले रहे हो, तो आपके मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि अरे पैसा ज्यादा लग गया, पैसा डूब गया, पैसा खर्च हो गया। अंदर से भावना ये होनी चाहिए कि शुक्र है भगवान, आपने मेरे को 50 रुपए दिए, आज मैं ट्रेवल कर सकती हूँ, मुझे 50 रुपए देने के लिए शुक्रिया, वगैरह वगैरह। तो ये एक्सरसाइज आप धीरे धीरे जब करोगे ना प्रैक्टिकली, तो आपको खुद आंसर्स मिलेंगे कि सिचुएशन में कैसे आपको ग्रेटफुल या पॉजिटिव रहना है, नहीं तो एक कंप्लेंट या एक नेगेटिविटी भी आपको 10 कदम फिर पीछे ले जाएगी। आगे।
आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। हाँ, तो आपको बिल्कुल अलर्ट अवेयर रहना है। कहीं से आपको चाहे 1 रुपया भी गिरा हुआ मिल जाए, कोई इसने गिफ्ट किया कभी, है ना, कहीं से भी कोई आपको घर में भी कहीं पे कोई रुपये मिल रहा है, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है। जैसे कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कि मुझे तो लाइफ में इतने गिफ्ट में, तो गिफ्ट शोरूम से इतने सारे, तब भी गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। तो अभी जैसे कल मुझे नहीं पता कहाँ से आया, अभी तो मैं देख ही रही थी टेबल पे पड़ा हुआ है, तो लोड़ी का सामान था उसमें और कुछ बुक्स थी, तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट, रात को ही टेबल पे आया कहीं से, तो बाहर स्टाफ ने लाके रख दिया होगा टेबल पे, बट गिफ्ट है ये दिख रहा है। और मैंने अभी देखा भी नहीं किसने दिया, बट आई वाज सो ग्रेटफुल कि थैंक यू भगवान, आपके दिए हुए, मतलब भगवान बोलो, लक्ष्मी बोलो, अगर नाम पता है जिसने बोला तो उसको बोलो, जिसको भी बोलो आप, मतलब हर यूनिवर्स सबके लिए है ना, सब सेम यूनिवर्स का ही रूप है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने गिफ्ट्स देने के लिए, कि जिसने भी गिफ्ट भेजा, चाहे उसने कुरियर से भेजा, उसने कुरियर के पैसे दिए, उसने जो भी गिफ्ट भेजा उसके पैसे दिए, खरीदने के लिए भी अगला गया होगा उसमें पैसे लगे होंगे। तो मतलब जो भी चीजें हैं, आर यू अवेयर ऑफ इट? कोई टैक्स रिफंड मिल रहा है, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, आर यू अलर्ट फॉर बीइंग थैंकफुल? क्योंकि करंट में अगर आप थैंकफुल रहोगे, अलर्ट रहोगे, तो आप अपने एक दो पास्ट के लिए तो आप अलर्ट हो ही, करंट के लिए भी अलर्ट हो, अभी वर्तमान में भी अलर्ट हो, तो स्पीड डबल स्पीड में बढ़ जाएगी। जादुई अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। यहाँ पर आपको सोचने और फील करने के लिए कहा गया है। मैं हाईली सजेस्ट करूंगी, हाँ सोचो, फील करो, बोलो, पर लिखने से आप ज्यादा डीपर जा सकते हो। मतलब ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने भी शुरू शुरू में एक्सरसाइज करी थी, ओ ऐसे छप्पड़ फाड़ के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं इतनी स्पीड के अंदर। मतलब कि, मतलब वो आप करके देखो, आपको खुद रिजल्ट पता चल जाएगा, इतनी स्पीड में रिजल्ट्स आते हैं। $1, आप आगे पढ़े। नंबर 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। हाँ, तो ये आप इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी लिखना चाहें उसको चिपका दो। और मतलब मैंने जो बता ही दिया, मिनिमम हर हर आवर में आप इसको निकाल सकते हो। तो जैसे हमने थोड़ा टाइम पहले एक्टिविटी करी थी रिट्रीट में, कि मतलब कि, और अभी भी करी थी, कि जैसे 9 बार, 6 बार, 3 बार, या हर बार जब भी आपका जैसे 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, तो जरूर निकालो। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था। तो जैसे अभी उसके बाद उसने कहा नोट को रख दो या लगा दो, तो मैं सजेस्ट करती हूँ एक नोट पे लिख के लगा दो, $10 का, $20 का, $100 का, डजेंट मैटर, कोई भी नोट ले सकते हो, डिनोमिनेशन डजेंट मैटर, ठीक है। और एक अपने पर्स में रखो, ताकि आप जब घर से बाहर हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो भी आपको ध्यान रहे, है ना, उसको छूना। और ये आप बोलो कि मैडम उसको नोट को ही छूना, हाँ नोट मतलब जिस नोट को आपकी कंट्री में करेंसी की तरह यूज किया जाता है, हम उस नोट की बात कर रहे हैं। आगे। नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
थैंक यू मैम। सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर डे विद द जादुई पत्थर। इवन जादुई पत्थर जैसे आज आप रात को पकड़ोगे, तो अगर आपने दिन में ये एक्सरसाइज करी है, फॉर एग्जांपल मनी का ग्रैटिट्यूड, पास्ट में जाके, जैसे कि हो सकता है आपने कभी शादी, सब मोस्टली कई लोगों ने शादी की होती है, तो आपने कभी शादी करी, तो आपकी शादी के ऊपर हो सकता है आपके पेरेंट्स ने कभी खर्चा किया हो, हाँ, टेंट किसने लगवाया, केटरर किसने बुलवाया, आपको वेडिंग ड्रेस किसने लेके दी, तो क्योंकि हर चीज पे पैसे लगते हैं यार, हर चीज पे। तो आपने नहीं लगाया पर किसने तो लगाया है, किसी रिलेटिव ने लगाया है, किसी स्पॉन्सर ने लगाया है, किसने तो लगाए हैं। बट आर यू इनफ ग्रेटफुल फॉर एवरी मनी स्पेंट, पेनी ऑफ मनी स्पेंट ऑन यू? बिकॉज अगर आप आगे भी चाहते हो आप पे समृद्धि की कृपा बनी रहे, तो पहले पास्ट के जो आप पे हुए हैं उनके लिए जब आप शुक्रगुजार होते हो, और अभी भी जो चीजें मिल रही हैं, क्योंकि जैसे ही आप पास्ट का शुक्रगुजार शुरू होना शुरू करोगे, आपको करंट अभी वर्तमान में कमाल की तब्दीलियां होती हुई दिखेंगी। तो अलर्ट रहना कि ये नहीं कोई पिछला होता नहीं है वो आगा दौड़ पीछा छोड़ वाली हरकत, कि मतलब पीछे का ग्रेटिट्यूड कर लो पर अभी भी जो मिल रहा है उसके लिए भी शुक्रगुजार रहना। ओके, और अपने मुंह पे जिप कर लो कि अगर कोई कंप्लेंट या नेगेटिव चीज मुंह से निकलने वाली है किसी भी वे में पैसे के लिए, अपनी खुद की नियामतों को खुद ही क्यों गवा रहे हो? हाँ, आगे बढ़ना है अगर, तो अब हमें अलर्ट रहना है, किसी भी वे में अलर्ट रहना है। नंबर 1 लिख लो, है ना, जो आज बेटा जी ने शुरुआत में कराई थी, तो आपको लिस्ट पूरी होनी चाहिए कि आप एक्चुअली में कितना महीने का कमाना चाहते हो, पर आपकी जरूरत कितनी है इसको कौन जस्टिफाई करेगा? आपके लिस्ट में लिखे हो आर्टिकल्स। वरना तो तुम कंपैरिजन में रह जाओगे, अच्छा मेरा दोस्त इतना कमा रहा है महीने का 1 करोड़, मुझे भी 1 करोड़ चाहिए। भाई तूने 1 करोड़, चल ठीक है तो कुछ चाहिए, पर पहले बता करेगा क्या उससे? अगर आपके पास एक प्रॉपर वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस है, तो ही यूनिवर्स आपकी लिस्ट को वेरीफाई करेगा। जैसे होता नहीं है, प्रॉपर उसको चेक करता है कि हाँ ये सब तो जरूरी है। अब अगर आपके खर्चे ज्यादा है कि आपको हो सकता है अपने लिए जेट लेना हो, प्राइवेट जेट लेना हो आपको, पर प्राइवेट जेट करना क्या है, क्यों जाना है? फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि भैया मेरा बिजनेस ऐसा है कि मेरे को कभी नागपुर जाना पड़ता है, कभी मुझे पुणे जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, मेरा अम्बावत वहां पे भी है, तो हर जगह पर वो तो है, हेलीपैड तो है, पर मेरे को ट्रैवल में बहुत टाइम लग जाता है और मेरे को हर बार मीटिंग पे क्लाइंट को जाके दिखाना पड़ता है ये सामान, काम जो भी आप कर रहे होगे। तो फाइन, मतलब थोड़ा वैलिड सा लग रहा है आपका रीजन, थोड़ा सा वैलिड तो है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना होता है, इसलिए आपको एक प्राइवेट जेट चाहिए। प्राइवेट जेट चाहे 100 करोड़ का हो चाहे 20 करोड़ का हो, और ठीक है आपके पास कोई लॉजिकल रीजंस भी और लॉजिकल एनालिटिकल्स भी हैं कि वहां पर भी है, अम्बावटा में भी हेलीपैड है, पुणे में भी हेलीपैड है, तो मतलब हेलीकॉप्टर लेना है उसकी आपको पूरी लॉजिस्टिक्स पता है कि उसको पार्किंग कहाँ करनी है, कहाँ से टेक ऑफ होगा, कहाँ पे उतारना है, और अब आपको पता है कि मेरे को ये वाली कंपनी का ये प्राइवेट जेट चाहिए, इतने करोड़ का है। फाइन, यूनिवर्स से ओके फाइन, जरूरत है दे दो इसको। परंतु अगर आप सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्योंकि टाटा बिरला के पास होते हैं प्राइवेट जेट, तो मुझे भी चाहिए प्राइवेट जेट, जबकि आपको कुछ करना नहीं, कि सब्जी लेने जाना है उसके अंदर, क्या करना है आपने उसके साथ, करना है क्या बताओ? क्यों नहीं एक नॉर्मल एयरपोर्ट आपको सूट कर रहा है, क्यों नहीं नॉर्मल फ्लाइट्स आपको सूट कर रही? तो लॉजिकली अपनी लिस्ट बनाना, लॉजिकली, ओके, विद योर माइंड, एंड देन अलाउ द यूनिवर्स टू सपोर्ट यू। आप बस जुट जाओ अपने पास्ट के शुक्रानों के अंदर, ठीक है जी? सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी, लव यू ऑल, हैव abundance ऑफ मनी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, एंड यस इट इज पॉसिबल, वेरी वेरी पॉसिबल। आपने क्या करना है, बस अपने असाइनमेंट पे जुड़ जाओ। तो आज तो अपनी मोटी कॉपी लेके आना और पेन लेके आना 12 बजे, ठीक है? क्योंकि मेरे से पाला पड़ने वाला क्योंकि आई रियली फील मनी के क्षेत्र में तो हर किसी के जिंदगी में, इवन बच्चे भी हैं आपके घर में तो बच्चों को भी ले आना, बुजुर्ग भी हैं तो वो भी ले आना। क्यों? क्योंकि मनी की एनर्जी जब चेंज होती है तो सब लोग अगर मिलके कर रहे हैं, जल्दी चेंज होनी शुरू, पूरे घर के हालात चेंज हो जाते हैं। आप अकेले मिलके कर रहे हो तो एक स्पीड होती है, परंतु अगर आपके घर में सबको लगता है कि हाँ पैसे की अबंडेंस होनी चाहिए, तो सबको बिठा लो अपने साइड, ठीक है? तो आप चाहे एक पार्टिसिपेंट भी होगे, पर आपके घर वाले सब लोग साथ में बैठ सकते हैं उस टाइम पे, चाहे आप रिकॉर्डिंग भी कर रहे हो। जरूरी नहीं कि 12 से 2 में आप अवेलेबल हो, आप हो सकता है वर्किंग हो, तो कोई बात नहीं, आप रात को निकाल लो 8 से 10 का टाइम, आपको रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ऑन करो, अपने पूरे परिवार को साथ बिठाओ। पैसा तो सबको जरूरी है यार, बच्चों को आज से सिखाओ पैसे के लिए शुक्रगुजार होना, ताकि फ्यूचर उनके लिए हमेशा माला माली निकले। ओके, तो ये एक्सरसाइज तो जितनी जल्दी करना शुरू कर दोगे उतना अच्छा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस जर्नी, एंड एनी क्वेश्चन? Thank you, Anjali. Thank you, Surita Yes. ji. Thank you very much, Beta ji, for creating Thank that you, ma'am. at the beginning. And thank you, everyone, for your participation and being a millionaire in your life. Sachi mein. Thank Big you so much. millionaire. Yes. Any question before we sign off? यस मैम, एक क्वेश्चन आया कि आपने अभी लोधी गार्डन में जो नोट दिए थे वो यूज कर सकते हैं क्या? दिए नहीं थे, हमने गिफ्ट किए थे।
हाँ यही दिया था हमने, इसको बहुत ब्लेस किया था, मतलब कि मैंने और अरविंद जी ने, मतलब कि हमने ये प्रॉपर हर नोट के ऊपर पहले हिंदी में जैसे आगे लिखा है, पीछे इंग्लिश में लिखा है। एंड हाँ आप यूज कर सकते हो, पैसा ही तो है, तो पैसा। और ये तो सुपर ब्लेस्ड मनी है, मतलब कि जिसके अंदर एक ऐसे इंसान, मतलब देखो दुनिया में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान बहुत है ना, जैसे कुछ लोगों के बच्चे, जैसे किसी के पास बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो किसी को बोले कि सदा सुहागन रहो या फूलो फलो, या ऐसे करके, जो जिसके पास किसी चीज की पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे कि हम क्यों लोगों से, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं या उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि वो बहुत अमीर है, तो उसके पास अमीरी की तो पॉजिटिव एनर्जी होगी ना, तभी तो अमीर है। तो जब हम उससे आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं अमीरी के, तो ऑब्वियसली वो जल्दी काम करना शुरू करता है। अब एक कोई और आता है, खुद ही शादीशुदा नहीं है, खुद ही उसको पति नहीं मिल रहा, खुद ही वो सुहागन नहीं है, हाँ, और वो चाहती है वो सुहागन बने, पर वो नहीं है सुहागन। अब वो उसके अंदर पॉजिटिविटी है कि नेगेटिविटी है कि मेरी शादी तो हो नहीं रही, अब वो किसी को आशीर्वाद दे कि सदा सुहागन रहो, बहुत अच्छा पति मिले तुझको। एक्सक्यूज मी, आप पहले खुद पे तो काम करो। अगर आपको सच में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए पर आपको नहीं मिल रहा, तो आप किसी और को ब्लेसिंग कैसे दे सकते हो? अगर आपको खुद बच्चे चाहिए, जैसे कि कोई लेडी है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है खाली, पर उसके खुद के ही बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, और वो किसी और को बोले कि हाँ पुत्रवती भाव सदा फूलो फलो, हाँ बच्चे हो तुम्हें बहुत, कैसे? कोई चीज तुम्हारे पास है तभी तो तुम उसकी गुड एनर्जी को आगे पास कर सकते हो। हाँ अगर आपको सच में वो चीज चाहिए, तभी उसके लिए नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पैसों की दुनिया में तो वाहिगुरु वाहिगुरु मतलब कि अगर सपोजिंगली ये नोट, बिकॉज आई फील abundance ऑफ मनी, लाइक रियली abundance ऑफ मनी, एंड इफ आई एम रियली रियली, मतलब if I'm telling you something to practice, yes it is gonna be really working well for you. if I'm ये जो नोट्स जिनको भी आज तक गिफ्ट दिया है हमने, क्योंकि अरविंद जी और मैंने दोनों ने मिलकर बहुत प्यार से बनाया है इसको, तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड यू कैन रीयूज इट और ऑलवेज यूज इट रादर। इसको तो आपको दिन में 10-10 बार भी करना चाहिए, मतलब जरूर करना चाहिए, और अपने आप से बनाओ और अपना प्यार, अपनी कृतज्ञता डालो। ये नोट बनाने से पहले वो एक्सरसाइज कर लेना कृतज्ञता वाली, ताकि जब ये नोट बना रहे होगे तो आपको कृतज्ञता अंदर से आनी शुरू हो जाए। आई होप इट्स आंसर्ड। यस मैम। मैम पूछ रहे हैं कि बचपन का पैसे का ग्रेटिट्यूड कैसे करें, कुछ एग्जाम्पल। बचपन का पैसा, मतलब आपको कभी, आई रिमेम्बर मेरे हमारे को जब पैसे मिलते थे, मतलब पैसे इन द सेंस पैसे भी तो मिलते हैं ना, जैसे कि कभी कोई इसने सगन दे दिया, दिवाली पे गिफ्ट कर दिया, कंजक मिल गई, कंजक पे नहीं पैसे मिलते आपको, कंजक पे आपको जाए 1 रुपया मिला, पर किसी ने तो पैसे दिए ना, आपको पैसे मिले तो किसी ने तो उसको कमाया था। आपने हो सकता है कंजक वाले जो घर वाले होते हैं उनको थैंक यू ही ना बोला हो, या दिल से कृतज्ञता फील ना करी हो, इसलिए आज आपको गिफ्ट मिलने बंद हो गए। तो जैसे बचपन में किसी ने भी आप पे खर्चा किया, आपको कपड़े लेके दिए, आपको जैसे मैं अपनी मासी के घर जाती थी, तो जब भी मैं मासी के घर रहने जाती थी समर वेकेशंस में, वो हमेशा मुझे फ्रॉक देती थी, कोई मतलब ऐसे कोई कपड़े देती थी, गिफ्ट करती थी। तो एंड अगर उन्होंने मुझे फ्रॉक दी है, तो फ्रॉक पे जो भी पैसे लगे उन्होंने खर्चे हैं ना, तो अभी मैं कैसे लिखूंगी आई एम वेरी थैंकफुल टू मासी फॉर गिविंग मी वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉक। अगर मुझे कोई पैसे याद, थैंक यू मासी मेरे को फ्रॉक देने के लिए, पैसे खर्चने के लिए, या थैंक यू मासी मैं जब आपके घर आती थी आप मुझे इतना घुमाने फिराने लेके जाते थे, उन सब खर्चे के लिए। अगर आपको पैसे याद आ रहे हैं तो पैसों के लिए देखो डिपेंड करता है। अगर आप अपने मम्मी पापा, जैसा कि मम्मी पापा ने आपकी शादी पे खर्चा किया है, तो आपको याद है कि हाँ शादी पे खर्चा, थैंक यू पापा मेरी शादी पे इतने सारे अच्छा अच्छा खाना अरेंज कराने के लिए, कैटरर्स को पैसे देने के लिए, डेकोरेटर्स को पैसे देने के लिए, थैंक यू पापा। क्योंकि पापा ने तो मेहनत से कमाया है ना, और वो आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर कई लोग तो हनीमून भी पापा मम्मी के पैसों से जाते हैं, होता है ऐसे कई बार हम भी गए थे। तो मतलब कि जो भी है, तो थैंक यू पापा मम्मी, या थैंक यू पापा, या थैंक यू दादू, या जो भी है ना। अगर आपका घर आपके दादू ने बनवाया, प्लॉट उन्होंने खरीदा था, तो यू कैन बी रियली थैंकफुल। अगर आप, और ये कमाल की बात क्या, आज हम 12 बजे बात करेंगे क्या, अगर आप प्रॉपर्टीज की दुनिया में फ्लरिश करना चाहते हो, तो जहां भी अभी किसी और आज आपको लगता है कि मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहा, या मैं घर नहीं खरीद पा रहा, या मैं, हाँ जो भी आपको लगता है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिविटी कहाँ से आई? आप कभी ना कभी किसी और की प्रॉपर्टी में, किसी और के प्लॉट में या फ्लैट में रहे हो, किसी और ने पैसा खर्चा था पर आपने उसके मजे लिए, और आपने इनफ थैंक यू नहीं करा। जैसे आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इनटू दिस एक्सरसाइज, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, मतलब इवन मैं घरों की अगर खाली बात करूं फिलहाल के लिए, तो मेरे दादू का घर आजाद मार्केट में है, हाँ वो तो दादू का है ना, तो उन्होंने लिया था, तो उनके लिए थैंक यू। इवन बाद में हम लोग किराए पे रहे थे गुलाबी बाग में काफी टाइम तक, उसके लिए थैंक यू। इवन जो पीतमपुरा में घर बना था, उसमें पापा वगैरह ने तो हेल्प करी थी, पर दादू ने ही मेन प्लॉट खरीदा था, तो उनके लिए थैंक यू। तो ऐसे करते 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 कितने घरों का मेरे को, कितने कितने कहते हैं ना, 100 200 500 ना जाने कितने, आज अगर मेरे को घर नहीं मिल पा रहा, तो 100% मैंने पास्ट में जहां जहां मैं रही हूँ उन सबके ग्रेटिट्यूड ड्यू है।
ओके तो ये हम आराम से सीखेंगे, 2 घंटे लग के एक्सरसाइज करेंगे। तो आई होप इट्स आंसर्ड फॉर नाउ। जो लोग खुद करने वाले हैं, आई होप यू कैन गेट अ हिंट ऑफ इट। बाकी जो बुक में यस बोला दोबारा से पढ़ लो, इंग्लिश में हिंदी में। मैम, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आई डोंट रिमेम्बर यू मेंशनिंग इट। 369 में ड्रीम्स लिख सकते हैं क्या? ड्रीम किसने लिखने को बोला आपको? कृतज्ञता करना। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट डे जो ड्रीम्स लिखे थे। किसने बोला उसको बार बार लिखने हैं? मैं हमने वही पता नहीं, इसलिए उनका बार बार आ रहा है, इसलिए लगा हाँ ये क्लैरिटी के वो हमने कर लिया। अभी सुबह बेटा जी ने आपको लिखवा दिया ना कि अभी आपको पैसों की दुनिया में क्या वांट है, क्या इच्छा है, क्यों चाहिए आपको पैसे, वो आपने लिख लिए। जो आपने लिख लिए वो ठीक है, अब अपने ग्रैटिट्यूड की कमाइयों के ऊपर सब कुछ यूज करो। अपनी पूरी एनर्जी जैसे हमने पहले भी बताया था, है ना। आपको अपने सपने को बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? जानता है, हाँ आपका सपना जिंदा है आपके लिए, ये जरूरी है। आप इस समय जो लिख रहे हो, आपको पता तो है कि आपका सपना क्या है ना। तो सपने को बार बार नहीं लिखना, ग्रैटिट्यूड को बार बार लिखना। अब हम एक्सरसाइज में आ चुके हैं। अब 12 दिन जो ये वाले निकलने वाले हैं वो ग्रैटिट्यूड की भरपूर कमाइयों के दिन है, ताकि 13वें दिन पे अगर हम दोबारा सपनों के बारे में बात करेंगे तो तब तक हमारे पास इनफ कमाइयां इकट्ठी हो जाए कि वो उन उन सपनों की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाए। इज इट आंसर? यस मैम। मैम, एमएमएम पे 2-3 क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड। एक सेकेंड। जब हम ऐसे प्रैक्टिशनर्स के साथ बातें करते हैं जिनके पास इनफ इनफ ऑफ ग्रेटिट्यूड है, इनफ मतलब हमें पता है वो ऑलरेडी दो दो, हमें कई लोगों को पता है कि जब भी ट्रिपल एम हम थोड़ी ना करते ट्रिपल एम। अब जैसे आज अगर सपोज एनी ऑक्यूपाइड है, कहीं जा रही है, तो मुझे अपना टाइम निकालना होता है। अगर मैं बिजी हूं तो एनी को टाइम, हम दोनों के अपने अपने काम है, अपने अपने बिजनेस है, अपनी अपनी जिंदगी है जिसमें हम बहुत बिजी हैं। ट्रिपल एम इज अ बिग टाइम सोशल कमिटमेंट। और ये इसलिए हम उसके चार्जेस क्यों रखते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी के वो 2 घंटे बहुत कीमती हैं हमारे लिए, और हम निकाल के आ जाए और यहाँ पे बंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा पता ही नहीं होता। पर अगर आपने कुछ कमिटमेंट लगाई होती है तो एटलीस्ट आप शिद्दत से बैठते हो, आते हो, लिखते हो, चाहे लाइव में चाहे रिकॉर्डेड में, पर आपकी एक शिद्दत होती है कि मुझे करना है काम। ये मतलब कहते हैं ना इनवैल्यूएबल प्रैक्टिस है, परंतु आपकी कुछ तो कमिटमेंट होनी चाहिए ताकि आपको वैल्यू लेने में मजा भी आए। तो ये एमएमएम इतना कमाल की एक्सरसाइज, कितने लोगों ने पहले कभी लग के ग्रेटिट्यूड किया है, लग के किया और आपको मैजिक्स मिले हैं कि पहले नहीं मिल रहे थे, पर जब आपने लिखना, बोलना, उसको सोचना शुरू किया, महसूस करना शुरू किया, आपकी जिंदगी में बहुत स्पीड में। तो बहुत लोग रेगुलरली, चाहे अरविंद जी की क्लास होती है, एनी की क्लास होती है, मेरी क्लास, तो वो बार बार बोलते हैं मैम प्लीज एमएमएम कब शुरू होगा, एमएमएम कब शुरू होगा, क्योंकि टाइम नहीं है यार। दिन में कौन किसके पास टाइम है 2-2 घंटे? हमारे पास, हम तो अपना ग्रेटिट्यूड कर ही रहे हैं जो अपने टाइम के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से हम तो कर ही रहे हैं। जैसे 2 घंटे सुबह मिल गया, शाम को मिल गया, बट वंस यू स्टार्ट ट्रिपल एम तो आपको कमिटेडली आना पड़ेगा, आपको कमिटेडली सोचना है, कमिटेडली उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो दिस सेशन इज ओनली फॉर द प्रैक्टिशनर्स। और अब आपको अगर एक बार एक्सरसाइज बनाकर आदत सीख लो, पूरी जिंदगी काम आएगा। आगे बढ़ते बढ़ते पूरी जिंदगी आप खुद से equip हो जाओगे कैसे करना है काम आपको। फिर चाहे आप अमृत वेले में उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, आपको पता होगा कि मुझे कैसे करना है। अभी जैसे कई लोग रिकॉर्डिंग लेके, मुझे पता है वो सुबह मॉर्निंग में जैसे 6 बजे सेशन शुरू होता है, तो वो सुबह 4 से 6 2 घंटे रिकॉर्डिंग से काम करेंगे, क्योंकि वो आप दिन भर में बिजी हो, बच्चों के साथ बिजी हो, दुकान पे बिजी हो, बिजनेस में बिजी हो। सुबह कौन आपको 4 बजे कौन सा बिजीनेस है भैया? आपको कौन सी बिजीनेस है सुबह 4 बजे? 4 बजे अमृत वेला स्टार्ट हो रहा है, हम तो 6 बजे स्टार्ट कर रहे हैं ना सेशन। तो 4 से 6 में बैठ के 2 घंटे एमएमएम को घोट के पी जाओ, घोट के एक्सरसाइज करो, देखो क्या क्या रॉकेट लगने वाले हैं आपके पैसों की दुनिया के अंदर। मैं आपको सारे ऑप्शंस दूंगी, आपने कैसे करना है, काम आपका है। इज इट आंसर? यस मैम। ट्रिपल एम पे 2-3 क्वेश्चन है मैम, रिकॉर्डिंग मिलेंगे क्या? अभी क्या बोला मैंने? सुबह 4 बजे क्या मैं लाइव कर रही हूँ आपके यस। साथ? मैं कॉमन सेंस, मतलब थोड़ा सा तो कॉमन रखो यार। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, पर अगर इसमें थोड़ी ऑनेस्टी रखना, वरना अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लोगे। अपने 1800 रुपए बचाने के चक्कर में ना कई लोग ये करते हैं। मैंने पिछली बार मैसेज पढ़ा था भाई, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया के अंदर। फिर कैसे अबंडेंस क्रिएट करो, कहते हैं मैं एक लिंक खरीद लेती हूँ और मैं आप सबको लिंक बांट दूंगी, हम 1800 रुपए बांट लेंगे, 10 लोग मिलकर, सबको 180 रुपए पड़ेगा। ये हरकत करने के लिए आपका माइंडसेट कैसा है? स्केर्सिटी वाला है या अबंडेंस वाला? मतलब कैसा माइंडसेट है ये कि हमें ऐसी हरकत करेंगे कि मैं पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग मुझे मिलेगी, हम सबको बांट देंगे। फाइन, ओके। आपको क्या लग रहा है यूनिवर्स की आंखें नहीं है, धर्मराज की आंखें नहीं है क्या? हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा, आप शायद 100 लोगों के साथ काम मिलकर जो मर्जी करो, पर आपको तो पता होना चाहिए ना कि जो आप कर रहे हो वो इंटेग्रिटी में है या अबंडेंस माइंडसेट में है कि नहीं है। हाँ रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, ऑब्वियसली सबको मिलेगी, पर प्लीज मेक श्योर
ज्यादा से ज्यादा उस रिकॉर्डिंग को जिस बंदे ने पार्टिसिपेट किया वो, या उसके घर के अंदर जो लोग बैठे, कई तो इतने सियाने लोग होते हैं, अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो कमाल कमाल की दुनिया, पति पत्नी है, एक ही घर में रहते हैं, पर दोनों अलग अलग लिंक खरीदते हैं हमसे। क्यों? क्योंकि अबंडेंस है जी पैसे की हमारे पास। अबंडेंस माइंडसेट से काम करोगे तो अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, स्केर्सिटी माइंडसेट से काम करोगे स्केर्सिटी अट्रैक्ट करोगे। अब आपकी चॉइस है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। And आज से सेशन पेड है मैम? ऑब्वियसली, पैसे कभी फ्री में नहीं मिलते मेरी जान। पैसे लेने जा रहे हैं, पर बड़ा फ्री दे दो। तो फिर माइंडसेट क्या है? स्केर्सिटी। अबंडेंस थोड़ी ना, अबंडेंस वाला तो है मैडम। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, 1800 रुपए लोग कहते हैं मैडम 18 लाख डोनेशन करने को तैयार होते हैं हमसे, 18 लाख की डोनेशन ले लो मैडम, क्योंकि जो काम मिलने वाला है ना वो अमूल्य है, अमूल्य है। हम डोनेशंस लेते नहीं है, हमारा हमारा कोई चैरिटी ऐसे प्रोग्राम है नहीं, हम डोनेशंस लेते नहीं, हमारे को फीस ही ओके है, क्योंकि आप भी इज्जत से काम करो, हम भी इज्जत से काम करते हैं। तो कितनी बार डोनेशंस आती है और हमें रिवर्ट करना पड़ता है, उसको वापस भेजना पड़ता है कि नहीं हम नहीं डोनेशन ले रहे हैं। तो कई लोग किसी और के लिए पे कर दो कि भैया अगर आपको लगता है आप अबंडेंस माइंडसेट में हो, आपका कोलीग है, आपका कोई एम्प्लॉई है और आपको लगता है उसकी जिंदगी में भी फायदा होना चाहिए, तो ठीक है, गिफ्ट करने हैं, मैजिक बुक के गिफ्ट करो, सेशंस के गिफ्ट करो, ये रबड़ी मलाइयाँ रेवड़ियाँ जो बांटते फिरते हो, 200 रुपए का 500 रुपए का जो भी रेवड़ी का डब्बा है, कौन खा रहा है? शुगर फैला रहे हो दुनिया के अंदर। शुगर फैलाने की बजाय शुक्राना फैलाओ, काम आएगा तुम्हारे भी, उसके भी। आई होप इट्स आंसर। यस मैम। एंड बहुत लोग इसके पेमेंट कहाँ करने हैं, तो वी विल शेयर द लिंक अगेन इन द वो आप ग्रुप। लोग देख लो, ठीक यस है? मैम। वो आप लोग देख लो एक बार। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वॉलंटियर, सरिता जी, अंजलि, शैला, आचार्य जी, एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। बिकॉज आई नो जब दिमाग लग रहा होता है उस समय काम कर रहे होते हैं उस समय, और आप लोगों की टीम्स कितना जुट के काम करती है। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज बीइंग सीन। मतलब जो भी आप लोग करते हो दूसरों के लिए और उनके 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 अपलिफ्टमेंट के लिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ईच सपोर्ट यू आर गिविंग। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू एनी, थैंक यू नोना, thank you everyone for your very very strong support to make this work really spread. Yes, is it answered all that? यस मैम। कई लोग ने रजिस्ट्रेशन किया है बट दे हैव नॉट बीन एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप। एक तो ग्रुप है जिसका नाम है ट्रिपल एम। ओके, मतलब अब इस बार तो मैं मिलियनर है तो मतलब ट्रिपल एम मैं बोलूंगी उसको, फिर भी तो आपने उस ग्रुप में व्हाट्सएप में एंटर करना, और अगर आपके पास नहीं आप एंटर हो पा रहे तो अभी ग्रुप में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि प्लीज आई हैव, उसमें अपना स्क्रीनशॉट दे देना कि मेरे को ऐड करवा दो, और स्क्रीनशॉट अपना ही देना। पिछली बार इतनी कमाल की हरकतें करते हैं लोग कि मतलब एक ही स्क्रीनशॉट को 6 लोग शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने दे दिया। अरे भैया, रब से डरो। पैसों की दुनिया में थोड़ी ऑनेस्टी रखना, ठीक है? मतलब मैं सब वो बता रही हूँ कि लाइक जो आपको नहीं करना, क्योंकि ये सब कुछ नेगेटिव माइंडसेट से आता है, ठीक है? तो कोशिश करना ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ इस शिद्दत में जुड़ जाओ, बस अब जुड़ जाओ। इज इट आंसर? मैम एक लास्ट क्वेश्चन मनी को लेके है। हाउ व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से मनी इज टेंजिबल? टेंजिबल का मतलब होता है जिस चीज को आप छू सकते हो। जैसे कि ये ग्लास टेंजिबल है ना? परंतु अब ग्लास से जो प्यास, जो मेरे को तृप्ति मिली, मैं उसको तृप्ति को नहीं छू सकती, पर ग्लास को छू सकती हूँ। मैं रिश्तों में खुशी को छू नहीं सकती हूँ, पर रिश्तों के अंदर मैं बैठ के बातचीत कर रही हूँ। 1 घंटा मैंने अपने हस्बैंड के साथ बातचीत करी, हम लोग आपस में जो हम टाइम को टेंजिबल कर सकते हैं। हम कई कई चीजों को छू नहीं सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको नाप नहीं सकते हैं, परंतु मनी को तो हम छू भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, नाप। टेंजिबिलिटी मतलब उसकी भौतिकवादिता, मतलब कि उस चीज को आप टेंजिबली छू नाप देख सकते हो। तो मनी तो टोटली टेंजिबल है ना, टेंजिबल है। आप इसका मीनिंग आप जाके गूगल पे ढूंढो, ठीक है? तो पैसे अगर आज आपके पास 1,000 है पर आपको 2,000 पे पहुंचना है, तो टेंजिबल है ना कि 1,000 है और मैंने एक्सरसाइज करी, विद इन अ वीक मेरे को 100 रुपए का फायदा हो गया, तो आपको दिख रहा है कि अब मैं 1100 पे आ गया, मैं 1200 पे आ गया। पर रिश्तों में कैसे पता चलेगा आपको कि आप अभी अगर 1,000 रुपए, आप 1,000 खुशियों में हो, तो आप 1,000 खुशियां ऐड हो गई या 2,000 खुशियां ऐड हो गई। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अनुभव पे बेस्ड होती है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, और पैसा इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो टेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब आप इसको इजीली नाप सकते हो कि जब आपने प्रैक्टिस करी, आपने एमएमएम किया, आपने अपने घर पे 2 घंटा बैठ कर प्रैक्टिस करी, तो आपको पैसों की दुनिया में क्या रिजल्ट दिखने शुरू हुए। तो पहले आज वाला लिख लो, जो आज जहाँ पे खड़े हो, सपना लिख लो, और उस डायरेक्शन में जब बढ़ना शुरू करोगे तो आपको दिखेगा कि मैं धीरे धीरे ग्रो करना शुरू हो गया हूँ। ऐसे ढंग से टेंजिबल यस मीन्स इसको नाप सको, मेजर कर सको। हो गया? यस और मैम। हाँ नहीं, और नहीं है मैम। Done. थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड जहां पे भी आप हो, जिस भी स्टेट में हो, जिस भी कंट्री में हो, जिस भी आप लैंग्वेज को यूज करते हो, प्लीज पैसों के लिए अगर आप अबंडेंस माइंडसेट चाहते हो, आपको ये 2 घंटे
अपने आप से करो, कोई फर्क, हम कुछ नहीं करने वाले ऐसा, हम वही करने वाले हैं जिससे आपकी आदत बन जाए। हम आपकी आदत बनवाने वाले हैं कि 2 घंटे रोज लग के काम आपको अपने लिए करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, टाइमिंग आपकी चॉइस है। आप रात को 10 से 12 में भी कर सकते हो, रात को आप 9 से 11 में फ्री हो तब कर सकते हो। अच्छा, 2 घंटे कंटिन्यू करने से फायदा क्या होता है वो समझो। ये नहीं कि आधा घंटा भी कर ले, 10 मिनट भी कर ले। अगर आप बहुत अच्छे हालात में हो तो आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हो, पर अगर आप डीपेस्ट फीलिंग तक जाना चाहते हो तो आपको कंटिन्यू, जैसे एक होता नहीं है दूध में से मलाई निकाल, मक्खन निकालना है फॉर एग्जाम्पल, है ना, वो दूध में से मक्खन निकालना है, तो मक्खन के लिए थोड़ा ना कि एक बार किया छोड़ दिया, एक बार किया छोड़ दिया, एक बार किया छोड़ दिया। अगर आपको दिल की गहराइयों से कृतज्ञता को निकालना है तो वो जो झगना है या वो जो चर्निंग है वो रेगुलर रेगुलर जब चलेगी तभी वो मक्खन बाहर आएगा। तो जैसे कि सिक्खी में बोला जाता है कि संत खाए मक्खन जनमानस पिए दूध, मतलब इन द सेंस कि बाकी लोग तो वो जुट के मेडिटेशन करते हैं, वो जुट के कॉन्टिन्यू वे के अंदर अपना कृतज्ञता करते हैं, तभी उनकी लाइफ में उनको ये खजाने मिलने शुरू होते हैं। तो तोड़ तोड़ के करने का फायदा है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर जब आप एक कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड वे में 2 घंटे लगते हो, 2 घंटे का मतलब क्या होता है ना, 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट, तो जब हम 369 में भी जाते हैं तो 60 60, मैं कह रही हूँ 1 घंटा कर लो स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं। पहले 1 घंटे से स्टार्ट करो 60 मिनट से, फिर धीरे धीरे 2 घंटे पे आ जाओगे, फिर धीरे धीरे 3 पे भी आ सकते हो, और कमाल की जिंदगी बनाओ अपनी। इसी के लिए तो पैदा हुए हो। इज इट आंसर? हो गया? Sorry, ma'am. Yes, ma'am. Done. थैंक यू सरिता जी फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और ये जो हम एक्सरसाइज करने वाले करेंगे पैसों के लिए, पर उससे आपके रिश्तों में, आपकी सेहत में, जब हम डॉक्टरों को थैंक यू बोलेंगे, आपके पापा को थैंक यू बोलेंगे, आपकी मेडिसिन को थैंक यू बोलेंगे जो आपने फ्री में खाई हैं पर पैसे तो लगे थे, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में कमाल की रोशनी होनी शुरू हो जाएगी। ओके, पर पैसों की दुनिया में हम फोकस करेंगे क्योंकि हमारे सेशन का नाम ही यही है, मिलियनर माइंडसेट। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सी यू एट 12 o'clock, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Thank you, everyone. Thank you, Beta ji. Thank you for brilliant ideas. Thank you, Eddie, for